सबसे पहले मैं पैनलिस्ट नंबर 3 से सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग सबसे सिंपल मैनर में, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, सबसे बड़ा माँ बाप है सोसाइटी में। अब एक स्कूल चलाता है, अब एक ऑर्फनेज को चलाता है, एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट चिल्ड्रन, हाउ दे ग्रो, व्हाट्स देयर मेंटल कैपेसिटी, मेंटल स्टेटस, वो किस तरह से रहता है, सोसाइटी का क्या किस तरह से इन्फ्लुएंस रहता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये इश्यूज पे थोड़ा हाईलाइट करें। Thank you so much. Thank you for calling us here and to give this talk on parenting and then mental health about the children and such. And this is something new. I really liked it. And Madan and then those who have created this platform is very nice. Yes, हम लोग सोसाइटी के लिए अच्छा है। और आज हम लोग शायद जो भी बात करेगा पेरेंटिंग का बारे में बोलने के लिए बोल रहा है, तो पेरेंटिंग के बारे में बोलने से एक है कि आई विल शेयर माई ओन एक्सपीरियंस। जैसे कि आई वॉज माई मदर एंड फादर गॉट डिवोर्स्ड व्हेन आई वॉज नॉट born. I was just 6 months pregnant and my mother was left. My mother left my father's house. Then I was in somebody else's house. Like I was born in second father's house. And second father was a Nepali. So when I talk, my tune and my essence of talking is becoming Nepali, just because I was brought up in a Nepali family. Then I was thinking that I am a Nepali child. So when I grew up, maybe 6 to 7 years, I started talking, and when I would walk around, then I came to know that my papa is Idu. So then I was transferred to my Idu parents, and that was a traumatized. Means वो वाला चीज जो हमको जिंदगी भर हंट गया। एक तो माँ से अलग, एक तो नया पिताजी। Means suddenly you are with somebody with whom you are like unknown person. वो तुम्हारा पिताजी हो गया। I was kidnapped. Because before that I was sent to a work as a child labor in somebody's house, this Cheta area only, because my mother had so many children, and then she was like she was not able to look after them, so I was sent for a child labor. So my father did not like, so he picked me up from that house. उस घर से उठा लिया हमको. Then it was like a kidnapping. तो मैं पापा का घर गया, and Papa was so rich, he was goddamn rich. मम्मी के घर में हमको चप्पल नहीं मिला पहनने के लिए, पापा का घर में 3-4 चप्पल मिला, गुड़िया मिला, कपड़ा मिला। और जब मम्मी का घर में जो हम तो सारा बहन भाई लोगों को देखभाल करते, वो लोग से भी एक बॉन्डिंग, वो लोग से भी पिछड़ गया। Then I was sent to the convent to study in the school. Then there I had another traumatized, that I left my mother. Then I had to go there to study, and that partying for my parents and that world I could not understand. क्या चीज था? मेरा पिताजी अभी कोई और है, माँ कोई और है, और हमको कहीं और रख दिया है। That was so much traumatized. So when I got married, मैं शादी हुआ, शादी होने के बाद तो we had my elder son is 20 years old. See, when I tell my experience, then I can understand others problem, the other children's problem. So I am telling my experience. When I got married, now 20 years. When I got married with my husband, then we had a fight. The literally fight was like that. सामान तोड़ना, फोड़ना, मारना, एक दूसरे को अब्यूज करना। आप जब झगड़ा करते हो husband and wife, you are not married, so you will not understand. Those who are married here, they will understand. When you are fighting with your husband or your wife, when you allegations एक दूसरे को लगा रहा है, तो प्यार से सोना मोना तो बोलेगा नहीं। जितना गंदा बात उसका ऊपर आएगा वो आएगा, और जितना गंदा बात मेरा ऊपर आएगा सामान तोड़ फोड़। Then my child was seeing all this one. मेरा बेटा देख रहा था वो सबको, और मेरा बेटी देख रहा था। बाद में क्या असर हुआ? बेटा और बेटी इतना डर, they became like गुमसुम, they don't talk, they were scared, they were confident level तो पूरा गिर गया, पढ़ाई नहीं सक रहा था, और बेटी जो हर बात में रोना। Then I felt I should change my attitude. I should change my way of living. Then I started keeping quiet. When husband gets angry,
When he doesn't like something, I don't say anything. When he is quiet, when he is okay, then I speak. Then I used to tell him, Baba, ऐसा बात है, ऐसा ऐसा करेगा. Then my third son came. Now he is 10 years old. We never fought. हाँ, कभी कभी मुंह से ज्यादा जोर से बोल देता है, तुम ऐसा नहीं किया था, तुम कर सकता था ना, वो नहीं कर सकता था क्या, वो हम लोग बोलता है. लेकिन लिटरली मारा मारी, सामान फेंकना, अपना आपस में अब्यूज करना, वो बंद कर दिया हम लोग, क्योंकि that is not a good parenting. I came to know that. My third son is like, he is more confident, he is good at studies. He has got good bonding with the parents. दोनों पापा मम्मी को हक करेगा, प्यार करेगा. लेकिन दो तो बड़ा वाला थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है. Because we scared him. हमने उनको डरा दिए. और हम लोग ने ऐसा किया कि when I was small, before going to school, I was taken to the court. And court में हमको पूछ रहा था कि आप पापा के पास जाएंगे कि मम्मी के पास जाएगा. और हमको लगा कि मेरा लेफ्ट मांग रहा है कि राइट मांग रहा है ना. For me, पापा भी important था. For me, mother was also important. So for every child, mother, father, both are important. अभी for example nowadays बहुत सारा marital extra marital affair चलता है. पापा का अलग से, मम्मी का अलग से. ये फोन जो है हम लोग का जो हाथ में आया है, ये अच्छा भी है, ये एक बुरा भी कर रहा है. तो इसका वजह से there is a fight at home in the family. But बच्चा को मालूम है कि पापा गलत है, बच्चा को मालूम है कि मम्मी भी गलत है कोई चीज में ना. जब आप लोग डिवोर्स होता है, अपार्ट होता है, बच्चा बीच में कहीं का नहीं रहता ना. वो माँ का पास जा सकते ना पापा का पास, लेकिन वो बीच में रह के क्या करता है, दोनों को नफरत करता है, दोनों पापा मम्मी को नफरत करता है. और नफरत करने का वजह से वो बच्चा क्या होता है, वो अपना अलग रोवे, नया दोस्त ढूंढेगा. तो वो ड्रग्स में जा सकता है, तो वो अपना मीन्स जहाँ में उसको काउंसलिंग मिलेगा, जहाँ में उसको सुकून मिलेगा, उसमें जाके वो जगह पे ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं. और हमारे ज़माने में जैसे था, हम लोग पापा मम्मी का पास रहता था, तो छोटा में हम लोग को रिस्पॉन्सिबल देता था कि आपको खाना बना के रखना है, हम लोग खेती जा रहे हैं, वापस आएगा तो खाना होना है, घर पे खाना बनाना है, और मुर्गी इतना बजे में बोन करना है, और सुअर को इतना बजे खोलना है. अभी का बच्चा लोग सिर्फ वही टेंशन है कि मोबाइल में नेटवर्क कब आएगा, आपका उसमें बैलेंस है कि नहीं, वो वाला चिंता आजकल ऐसा हो गया. आजकल हम लोग बच्चा लोग को जंगल जाओ नहीं बोल सकते. जंगल भेज दिया, वहाँ सेप्टिक हो गया, किडनैप हो गया, वो डर भी है. बच्चों को टाउन में अकेला भी भेज नहीं सकता है, वो भी है. लेकिन हम लोग मॉडर्न एज में आ गया है. लेकिन मॉडर्न एज का मुताबिक मम्मी पापा भी अभी बच्चा लोग के पास मोबाइल है, तो हम लोग को देखना है कि इतना ज्यादा कंट्रोलिंग नहीं, मार के पीट के वायलेंस दिखा के कंट्रोलिंग नहीं, प्यार से ना होगा. बेटा अब इतना टाइम में आप ये देख रहा था, इतना टाइम हो चुका है, अब इतना टाइम के बाद आपको पढ़ना है, इतना टाइम के बाद आपको नहाना है, चलो हम लोग. और मम्मी पापा आजकल का जमाना को हमको लगता है कि बच्चों को लेके रेस्टोरेंट जाना है, साथ में जाना है, पापा मम्मी साथ में जाना है, साथ में खाना है. और जिस घर में ज्यादा पापा ना मम्मी को अब्यूज करता है, तुम काम करना ही है, हर चीज ब्लेम मम्मी को लगाता है ना, वो चीज भी बच्चों को असर होता है. हर चीज ब्लेम मिसेस को नहीं लगाना है. और जिस घर में जो छोटा छोटा बच्चा काम करता है, चाइल्ड लेबर वाला लोग काम करता है ना, उसको मार के पीट के काम कराता है, तो आप बच्चों को क्या सिखा रहा है, किसी और को डोमिनेट करके रखो, किसी और को मार के रखो, तो आपका बच्चा वही सीखते जा रहा है. तो वो लास्ट में क्या होगा, सोसाइटी में किसी न किसी को मारेगा, वो क्लासरूम में किसी न किसी को पीटेगा, क्योंकि आपको सिखाया ही से गया है. जो पापा मम्मी करता है, आप उसका एग्जाम्पल, तो पापा मम्मी का एग्जाम्पल बच्चा है, सबसे पहले वही देखता है कि मम्मी और पापा क्या कर रहा है. मम्मी अच्छा से बात कर रहा है तो वो अच्छे से ही बात करेगा, मम्मी चिल्ला के बात कर रहा है तो चिल्ला के ही बात करेगा. और हम लोग का समय में, हम लोग का जमाना में ये डिप्रेशन वर्ड और स्ट्रेस बोल के हम लोग जानता नहीं था ये, और हम लोग को होता भी नहीं था, हम लोग को रियलाइज भी नहीं किया है ना. क्योंकि मैंने अपना दोस्त को बोला है, अरे रीना ये डिप्रेशन और स्ट्रेस वाला वर्ड जो ना हम जानता नहीं था, बोला भी नहीं है, और हमको एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है. लेकिन आजकल का बच्चा लोग हर बात में हमको स्ट्रेस हो रहा है, हमको हर बात में हमको डिप्रेशन हो रहा है, वो वाला बात बोलता है. लेकिन हम लोग का जमाना में हम लोग को ये बात हम लोग को मालूम भी नहीं था, और हम लोग एक्सपीरियंस भी होता भी था होगा, लेकिन हम लोग को बोलने के लिए था भी नहीं उसमें. लेकिन आजकल का बच्चा लोग ज्यादातर स्क्रीन में, मोबाइल में ज्यादा इतना ध्यान देता है कि सुबह से लेके शाम तक आप लोग स्क्रीन, कोई तो दरवाजा बंद करके. और यहाँ टाउन में एक मैडम है, काउंसलिंग अपना कोर्स किया है, तो काउंसलिंग करते समय में वो पता चला है कि बहुत सारा बच्चा सुसाइडल
टेंडेंसी है बच्चा लोगों में, ईदू बच्चा में। और ऐसा नहीं है कि हम लोग का ईदू बच्चा ये बच्चा बोला, ऐसा नहीं है कि ठेला वाला रिक्शा वाला ऐसा का बच्चा नहीं, अच्छा खासा फैमिली ऑफिसर के बच्चे लोग भी है। वो क्यों है? क्योंकि वो लोग अपना बात को शेयर नहीं कर पा रहा है, अपना स्ट्रेस को, अपना डिप्रेशन को पेरेंट्स का साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। या तो हॉस्टल में बैठता होगा, कभी कभी घर के पास जाता, मम्मी पापा के पास जाता होगा, तो मम्मी पापा अपना बिजी में रहता होगा, इसलिए भी आप शेयर नहीं कर पा रहा होगा। तो हम तो एंसलेस और जितना भी स्टूडेंट यूनियन को वो बोलना चाहता है कि हर स्कूल्स में कंपलसरी कर दो कि काउंसलर होना है, जिसपे बच्चा अपना बात शेयर कर सकता है, पेरेंट्स से नहीं होने से भी। और पेरेंट्स की तरफ से ये होना चाहिए कि आप स्कूल में जाके बच्चा का रिजल्ट देखो, आप बच्चा को नेगिंग मत करो, ये तो एक्टिंग ही कर रहा है। कोई बच्चा एक किसी का पागलपन है, वो भाई को पागलपन है, बड़ा भाई आके पिटाई कर दिया, बोला कि ये एक्टिंग कर रहा है, जबकि वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, उसको दौरा पड़ रहा है वो। और जो मेंटल स्ट्रेस में जो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है वो लोग रेगुलरली करता है, ऐसा नहीं है, वो टाइम टू टाइम करता है। आज वो अच्छा बैठेगा, क्योंकि मेरा भी माँ मेंटली डिस्टर्ब होके मर गई है, तो मुझे पता है कि हमको भी लगता था कि माँ एक्टिंग कर रहा है। अभी 2 दिन अच्छा बैठेगा, 2 दिन सारा बात बताएगा, 2 दिन के बाद उसका दौड़ा पड़ेगा, ऐसा होता था। इसलिए जिसका भी मेंटल स्ट्रेस वाला डिप्रेशन में है, दरवाजा बंद करके बैठ रहा है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो बात कीजिएगा। पेरेंट्स लोग भी आप अपना बच्चा के साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो बॉन्डिंग छोटा से रखना है, छोटा से। आप अपना बच्चा को हक करो, सुबह उठते समय में भी डंग 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 दरवाजा मार के क्या कर रहा है, सो रहा है, धूप निकल गया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो अपना आपका नर्वस सिस्टम पूरा वो हिला देगा। पेरेंट्स लोग थोड़ा प्यार से, उठो बेटा टाइम इतना हो गया, तो बच्चा बोल भी सकता है माँ सबको थोड़ा माथा दर्द है, तो होगा, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट करना भी है। लेकिन आप अपना बच्चा का बाउंड्रीज भी देखना है कि बच्चा ओवर ना करे उसको। और बीइंग एन पेरेंट्स, माँ और पिताजी हम होने का नाते, बच्चा तो नहीं बोला है कि हमको दिशा लिंगी का घर में जन्म देना था, हमको राकेश इको का घर में जन्म देना था, ऐसे नहीं। वो गॉड्स का प्लान, हम लोग का अपना बच्चा है, वो अब आया है, तो उसको देखभाल करना, उसको नर्चर करना, उसको जैसे कि गांच लगाया है तो उसको पानी डालना, उसमें कीड़ा पड़ रहा है कि नहीं वो सब देखना, वो एक पेरेंट्स का काम है। सिर्फ छोड़ दिया, अपने बलबूते पे छोड़ दिया, वो नहीं होगा। हमको उतना ही बोलना है, तो ठीक है, तो हमको इतना ही बोलना है। और तो जो नया पेरेंट्स ऐसा है, आजकल बच्चों लोग स्क्रीन में भी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, मोबाइल में भी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, जिसका वजह से बच्चा ज्यादा हॉस्टल भी ज्वाइन हो रहा है। पहले हम लोग का जमाना में हॉस्टल हम लोग जाता था तो हम लोग के पास घर में फ्राई नहीं खाता था, हम लोग का पास टीवी घर में नहीं था, हॉस्टल में टीवी था। अभी घर में सब कुछ है, घर में टीवी है, घर में खाना अच्छा पक रहा है, घर में सब मोबाइल है, घर में सब चीज है। बच्चा क्यों हॉस्टल जाए? हॉस्टल भेजने से बच्चा डिप्रेशन में आएगा। इसलिए जो पेरेंट्स को हम बोल रहे हैं कि आपका घर में सुविधा है, वही हॉस्टल का बच्चा को जितना आप हॉस्टल में पैसा फेंक रहा है उतना पैसा आप घर में ट्यूशन टीचर लगा दो, अपना मॉनिटर करो, अपना बच्चा को अपना पास रखो, ताकि आपका बॉन्डिंग और अच्छा होगा। अच्छा बोला बच्चा लोग। ओके, तो मैं पैनलिस्ट नंबर 1 के पास जाना चाहूँगा। मिस बेतम मराय, वो इस प्रोजेक्ट मैनेजर आमिया एनजीओ, जो कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन इश्यूज पे भी डील करता है, नंबर 1। नंबर 2, यू आर एन एम्प्लॉई ऑफ विप्रो, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बट एट द सेम टाइम यू आई थिंक यू आर द यंगेस्ट पैनलिस्ट। तो मैं चाहूँगा कि ये जो पेरेंटिंग इश्यूज है, फैमिली टाइज है, और जो मेंटल हेल्थ, ये इश्यूज पे आप ऐसे यंगस्टर थोड़ा इश्यूज पे हाईलाइट विद योर एक्सपीरियंस। Thank you so much, sir. I think this is like wonderful opportunity for me to share a stage with such an highly qualified personality from diverse background, from social activists to professors and lecturers, and also the community leaders out here. I'm very honored to be part of this, and first of all, special thanks to Center Ray Rowan for inviting me and giving me this space. I'm with him, Marai, and I'm like quite nervous. I think this space will be for me is like learn and unlearn. कुछ सीख के जाएगा और कुछ जो चीज़ मेरा माइंड में था वो छोड़ के भी जा सकते, क्योंकि I'll get more offended right from the right people out here sitting on the dice. So I think
in our community, it's mostly indigenous communities are like, we are very grounded, right? So we don't have, in nowadays we don't have sophisticated, like, what to say, mobiles, cell phones back then, right? So in our communities we had very, like, family ties are very strong. We had very homogeneous community, and when it comes to parenting, I think it is a collective efforts from all. It's not only for the parents, mother and father, it's for the whole community, like whole family. मेरा अंकल का भी हो सकता है, मेरा आंटी का भी responsibility हो सकता है कि how they look up to me, right? Sometimes like if we say whole collective responsibility, I mean कि अगर if auntie is comparing to me with his daughter or like her daughter, it is impacting me emotionally. It's doubting my capability that if I'm not doing this right, doesn't mean that I cannot fit in something else, right? So that comparison in the community is also a bad. I think I feel it very too much for a child who is growing and who is venturing on their capacity or their techniques, right? So I think that pressure should not be there. And when it comes to parents, I think I feel like I'm not generalizing, but I felt that in our community, mostly in like tribal community, we have lack of expressive our emotions. We don't say I love you. I'm not saying in English, but we don't express, right? We generally say we are very like okay type. We don't express our emotions. We are not open up to how you feel, what they are dealing with their day to life. We don't have open space to have a conversation to how I'm feeling, what are my dreams. I have never talked to my parents, my mother and father, that what I dream of. I think and also because they are illiterate, right? But it doesn't mean that they are educational, they are illiterate, but their life, they have lived through 50 years of their life. I think they have better experience for life, right? So I think parents should encourage, they should not feel that I'm not educated, so I can't converse with their own children, right? So their conversation should be there. They have, how many of parents are in here? Are you having any conversation with your children during dinner time? It's like you eat at 6 o'clock, your children are eating at 9 o'clock. So you are not having dinner time conversation. You are not discussing about their day-to-day lives. You are not, and also you are not talking about how they see their life ahead of it. It doesn't mean, and also one more thing, that if you are a doctor or if you are an engineer, your child cannot be the same, right? 5 fingers are not same. We should remember that. It cannot play all same roles, right? Every fingers have their own roles. So child cannot be distinguished if you have 5 children, they cannot be the same. Everyone cannot be the Usha like expert in sports. Everyone cannot be doctorate. So I think they should allow to venture it. Don't go for this sophisticated similar job. LDC or UDC is not life. There are so many other opportunities. There's a space. I think I have seen PD Pulu Bhaiya is also one of the eminent artists, animator I have known here in Roy. And so they are great entrepreneurs and speakers I have known. I think you should allow your kids to be what they want to be and what they are capable of. I myself is being an eldest daughter. I think my mother had given me a complete freedom. My parents had given me very complete freedom to venture your own. I make sometimes YouTube video. My mother was the one who watches, go make, do it, because I think I love you watching it. And when I had a very sweet moment with my parents, my mother was telling me that why she don't know how to type my names. She don't know how to see YouTubes, right? So whenever she, just randomly she watches, and my father used to say that, अरे किसी और का क्यों देख रहा है? अपना बेटी यूट्यूबर है, उसका देखो. Why you are watching someone else? That's how I got encouragement from their end. And my mother had been very positive. She feels like I never got educated. Night school तक ही किया है, because she was also eldest, and eldest to the 9 siblings of hers. And she was forced to go to खेती बाड़ी का scene. And she felt like, I don't want my daughters to be in highly sophisticated positions. I want you to be able to write your names. That is my main target. I have cried over how to spell my name. That struggle she had, right? So she don't want, we are 5 girls and we are never judged कि आप comparison कभी किया नहीं है son. We had only one brother, but he never got scooty, he never got bikes, he never got iPhones. I think parents now, this generation parents have, modern parents have a tendency to pamper their child, क्योंकि हमको ये नहीं मिला था वो टाइम में, मेरा टाइम में, तो हमको जो भी हम आज कमा रहे हैं हम मेरा बच्चा के लिए कर रहे हैं. That is not the right way. I think as they are saying goes कि earth is everything that man wants, right? But earth is nothing that man needs.
people's need or human needs cannot be fulfilled in all details, right? There's always like, if you lacks of money, you feel like ask हमको million बनाना है. So I think same goes for parents. कि if you feel like your child are in demanding, I think compromise थोड़ा होना चाहिए. They should know the difficulty of getting this money and on your plate, the food they are getting, also they are privileged enough. They should know. They should be grounded. I think grounded parents plays very pivotal role in shaping the mindset of कि हाँ मेरे parents इतना हमको इतना अच्छा से करके आए, then I'll be like, now I have very inner calling कि I should do something for my parents. It's not about they are pressuring me. It's my emotional connection that they had, despite all the odds, all the obstacles they had faced, they have given me this platform, a place where I can speak my mind and heart. So I think that's how parents should play, and I request to all the parents out there that please have a heart-to-heart conversation with your children and your relatives, and please don't confine your child only with cell phones and closed doors, and let your child explore nani, naba, naya, nata, सबको मिलने दो. It becomes more open up और expressive होता है और collective responsibility आ जाती है. अगर आप नया नाता का वहाँ नहीं भेजेगा, they will like most isolated रहते हैं. Even they won't greet your नाना नाता को भी greet नहीं करेगा. I have seen this in modern parenting कि वो लोग isolated में रह जाता है और नानी कैसे रहता है, नाबा कैसे रहता है, नाता कैसे रहता है, they don't know. I grew with my grandma, so I'm very close to it, and I'm very dear to. I feel they are very dear to me because I have seen all the lives. 90s का भी जी के है, and I'm seeing the electronic ज़माना भी. So my siblings are very young. That's why I make sure that they express whatever they feel like. And expressing and emotionally, as I'm a sustainability educator, and I know these kids sitting behind, they are also very close to me, and they are from Dibang Private Hostel and Dibang Library movement. So I have been with students from my 6th standards. I have expressed, I allow kids to express. You being the youngest panelist, तो मैं आपको और एक additional सवाल करना चाहूँगा. इंग्लिश में एक phrase है, helicopter parenting and free range parenting. तो अब ये जो टॉपिक में उसमें से कौन सा पेरेंटिंग को आप चूज करना चाहेंगे? एक तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, वेयर यू नो द पेरेंट्स स्ट्रिक्टली, हाँ. दूसरा है फ्री, हाँ आपको क्या करना है जो भी करना कीजिए, आप अपना डिसीजन लीजिए, उनको फ्रीडम. एक तो है एकदम स्ट्रिक्ट, सब मॉनिटर करें, उनको क्या खाना है, कब कहाँ जाना है, इस तरह से. I think too much of monitoring can be overwhelming for a child, and also too much of freedom can be over exhaustingly कि they are like मेरा तो कुछ फंडा फ्री है, जो भी कर लेगा, my father or mother doesn't mind. That can also be not be a good parenting, I believe. Somewhat strict. My father has been very strict. हम लोग को चेक करने आता था, but my mother has been very soft. She has very like different dimension. These two role plays very important role. He was strict because कि बच्चा मन 9-10 is very high tendency for a girl to fall in love. That is just normalized. And Facebook was introduced on the 12th. When I was in class 11 or 12, so Facebook was on a run. So I was very controlled by, not controlled, but like somewhat watched by my father. Okay, what you are doing? Why you are not picking call? But my mother was like, okay, go, do your things. Library, go. Library का कोई compromises नहीं था. I have never like I never did absent from going to library after my class for 2 years, 9 and 10, and still I'm connected with this library. And I believe if you allow your child to express their fear, their emotion, let it be. Let them express, let them vent out what they feel, right? Venting out sometimes feels like, at least koi to suna hai. So I do nature education also with kids. Even if I'm taking 25 students, I allow all of them to speak. कि कैसे लगा है, क्या फील हुआ है, क्या सीखा है. So it feels like you are included. कि हाँ दीदी हम मेरा बात सुना है. Even it might be silly thing, but at least he is speaking, right? That is how we grow with them. Okay, to the panelist number 2, Mr. Raza Lingi, who is an assistant professor. So, when it comes to parenting, so ultimately it is connected with mental health, substance abuse. तो हमने कुछ स्टडी करा था, background studies करा था. तो you have been through some kind of mental issues. Not exactly कि मतलब हाँ आपका situation एकदम खराब था, ऐसा नहीं है, but you have been through some kind of mental issues. तो मैं चाहूँगा कि आपका जो experience रहा है, तो is it because of the parenting or is it because of the society or is it because of some misinformation or peer members? किस वजह से आपको ये सब issues से गुजारना पड़ा? Thank you, Madan sir, for letting me face with the truth.
But before I proceed, I want to take a moment and want to thank especially the Central Ray Committee and I want to pay my sincere gratitude to moderators, of course you and Alia Dingo and all the fraternity, and also my deepest respect for Nani Desai and our panelists. And to be honest, I'm here to learn. I'm not here to impart. Give anything to anyone. I'm here to learn from these respected people. They have been, knowing about society so much than probably I could. So I believe I could learn from them. So the question you have asked, it's very much relatable for me. And to be short and precise, there were various factors at play for me suffering through this situation and going through all those, rehabs and all. So let me be honest, just how Aunami Desai said, I was born, but I never felt the fatherly love, to be honest, I never had a dad to look after me, and, I know it's a little emotional, but just, I never felt that fatherly love, and, I always wanted to be accepted, I always wanted to, feel loved, just like everyone else, and it was hard for me, I always seek for validation, no matter where I've been, I always seek someone to like me and someone to, love me, and that was the biggest mistake that I did. When I reminisce and when I think about it now, that was the, mistake that I committed. So, my mistakes, my inquisitiveness for searching validation has left me explore many things. Right from class 3, I was thrown in hostel, VKV hostel, and for class 6, I studied there, and from 6, I went to JNV, and from JNV, I been to Guwahati. In this process, I have come across many people. In this process, I have come across many persons. People had various versions of me, existing in their mind. Some thought I am this, some thought I am that. But to be honest, still now I couldn't never figure out who am I? Am I a good son, or am I a good brother? I still haven't, able to figure it out. It was very chaotic, and I was totally disorganized. I always seek for that validity, and I never know that kya karega life. I was very much confused, and in that confusion, let me give you a different perspective. In that confusion, I thought I could seek answer from doing substance abuse, drinking, and getting high, and indulging myself in various, illicit activities. I thought कि शायद यहाँ से हमको peace मिलेगा. And for a moment, to be honest, I got some peace. For a moment I thought, yes, this is the solution. This is the solution for me to, stay happy, to explore and to, find love, to get people to like me. But you know what? बच्चा लोग जब हम अभी सोचता है ना, जो वो मेरा solution था ना, वो मेरे लिए तो solution था, but that was the solution to ruin my life completely. जो हमने जो नशा किया है, जो हमने जो मस्ती किया है दोस्त लोगों के साथ, अभी हम जब सोचता है तो मेरा life को destroy कर दिया. It was the solution to ruin my own life, and I could never understand back then. But when I feel like I asked my sister for help. It was getting over my head, and the water was flowing over my head, and I was confused. I didn't know what to do, and I asked my sister for help. My sister told me that I have a friend who runs a counseling center, a rehab in Jairampur. And, this was the best decision I ever made. I went to rehab. And I would also, would like to clarify this misconception that only people who are abusing substance or drinking, they don't only go to rehab. I think everyone should go to rehab. I have learned so many things out there. I have learned to appreciate the, little things that could bring happiness in my life. I was, I was looking happiness in materialistic things. Especially I wanted a bike, I wanted a car, and I wish I had an iPhone. I was thinking, all these things could bring me happiness.
But when I went to rehab, I will just be honest, there's nothing to hide. And I know probably all the viewers online are watching, so don't judge me, when I say this. But yes, I have had a fair share of ups and downs in my life. I've been through a lot. I've been through hell, but the only thing that, that makes me happy is my mom, Whenever I think about my mom, because she is the only person that cares for me, and apart from my sister, and I always get emotional when I say this, but life has been a tough ride for me, and in rehab I learned that कैसा छोटा चीज से खुशी ढूंढना है, और खुशी ढूंढने के लिए they made us suffer, I won't break the anonymity of the rehab because there is a protocol that you are not supposed to discuss what you have been through in rehab, but they have made us suffer a lot, अंदर जब था, so I used to feel, very mad and angry about it. I used to feel so, pathetic कि इतना तक क्या deserve किया था कि I have to do all this, But eventually, as the time passed, eventually when I came out of that counseling center, my mind, the horizon was broadened and I learned so many things, कैसा हमको खुशी ढूंढना है छोटा छोटा चीज में. आप लोगों को सिर्फ बाइक से खुशी नहीं मिलेगा, आप लोगों को सिर्फ एक सुंदर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या अच्छा कोई आपको केयर करता है उससे खुशी नहीं मिलेगा. In life you have to search for happiness in very little things, anything. कुछ भी चीज में आपको खुशी ढूंढना है. अगर आप सोचेगा कि आप दुखी है, आपका ब्रेन इसको काउंसलिंग टर्म में, रिहैब टर्म में इसको बैक मंकी बोलता है. अगर आप सोचेगा आप दुखी है तो आपका दिमाग आपको रुला भी देगा, ठीक है. तो ऑलवेज सेट योर ओन पर्सपेक्टिव एंड खुद सोचो कि नशा से कभी किसी का ठीक होने वाला नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज I'm saying about every people, not only just suffering addict or not only people who have been through addiction. Every one of us, we live more in our head than in our body. हम लोग अपना ख्यालों में ज़्यादा रहता है. तो ये चीज़ हमको पता चला है in counseling center because we were told to do some physical activities, especially like झाड़ू मारना and all that, and we have to even clean our own toilet. It was very nasty. The first day I went after 10 days of detoxification, it was very pathetic that I had to clean all those algae formed toilet, and God, it was a nightmare for me. But I'm so thankful today. I'm so thankful today that I could see the bigger picture. Back then it was impossible for me to see the bigger picture. Now I believe that even if you don't like me, it's okay. I can accept this. I can accept it and I can live with that. Now I have, told myself that stop looking for validation. You don't have to make people like you. जरूरी नहीं है कि आपका लाइफ में जितना भी प्रोसेस, जितना भी people आएगा, they gonna like you. Life is a process of letting it go. जो रहना चाहते हैं, they can stay with you, and those who want to live, they can live. I'm not saying कि I am a good guy or I never did anything wrong. I have did so many wrong to so many people in their life. I have made so many mistakes and I have made false promises to many people, and probably many of you might thought me as a liar, and that would be right, I don't deny that. But now I'm in a state of mind that I don't want to disrupt my inner peace. I don't want you to, I will never give you the power to destroy my mental peace. You can think of anything about me that you like, but I will never give you the power to destroy my mental peace. And just for today, it's a rehab concept, just for today. You have to live just for today. The next day, after the clock strike midnight, it will be another day. Just for today. Just for today, I will be happy. Just for today, I won't fall prey to any intoxicated stuff, alcohol or anything. And just for today, I will love my family. And just for today, I will be unafraid. And just for today, just like that, I will be, in a peace of mind. And just like that, I will appreciate every little things in my life. And just for today, I will be the most happiest person that I could be. With these few words, I would just like to, Okay. तो मैं पैनलिस्ट नंबर 5 के पास जाना चाहूँगा, मिस तमीम मिली, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है और उनका बैकग्राउंड है सोशियोलॉजी में. एट द सेम टाइम ही इज़ अ PhD स्कॉलर एट RGU.
तो मैं आपसे चाहूँगा कि टेक्निकल एस्पेक्ट में, क्योंकि आपका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं आता है, टेक्निकल एस्पेक्ट में हाउ टू शेप द मॉडर्न, आजकल का जो बच्चे को हम लोग का जो पेरेंटिंग जो सिस्टम होता है उसको हम कैसे शेप करें, पेरेंटिंग को कैसे शेप करें टेक्निकली, बिकॉज यू हैव लिसन टू पैनलिस्ट नंबर 1 2 3 एंड यू बीन लिसनिंग टू 4 ऑल्सो, तो आप टेक्निकल एस्पेक्ट में इसको कैसे आप शेप देना चाहेंगे विथ योर understanding of sociology and technicalities of this matter? Okay, first of all, thank you very much. As a teacher myself, I'm much honored to be here with the educator and the teachers, especially the one who was formerly my own teacher in school. तो मेरे लिए तो बहुत proud का बात है ये जो है, और उससे भी बड़ा बात ये है कि I'm being called up to this very August meeting. तो बहुत अच्छा लगा ये यहाँ पे बुलाया गया. No doubt तो कुछ technical issues रहा था. Putting that aside, I'm so grateful to the Central Ray Committee. ऊपर से ये बात ये भी है कि अभी जो है नया टेक्निक आ गया है ऑनलाइन से, तो उसको एड्रेस करना है, तो which will give me further more एरिया टू रीच एज मेनी एज पीपल एज पॉसिबल. तो उसके लिए भी और भी थैंक यू ना, क्योंकि जो बात यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट कि जो प्रोसीडिंग्स होता है, जो मीटिंग्स होता है ना, जहाँ पे बात चलता है, दो लोगों ने सुना, किसी ने नहीं सुना, जिसने बोला यहाँ पे रह गया, ख़त्म हो गया. बट थैंकफुली to one of the aspects or good aspects of the artificial intelligence and इंटरनेट कम्युनिकेशन, अभी हम लोगों का बात जो है, चाहे बहुतों को खराब भी लगे, किसी को इरेलेवेंट भी लगे, लेकिन कम से कम कुछ लोगों के पास तो पहुंचे जो हम उनको क्या पता ना कुछ सीखने को मिले. तो इसके लिए भी बहुत थैंक यू आप लोग को कि यहाँ पे हमको ये मौका मिला. आई विल कम बैक अ लिटिल लेटर टू योर क्वेश्चन. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. सबसे पहले मैं शुरुआत इससे करना चाहूँगा. सिंस the small kids are here, I would prefer to speak in Hindi. उसमें बीच में इंग्लिश ला दूंगा. लैंग्वेज में कोई बैरियर नहीं है, you can speak in Urdu, Hindi and English, no problem. Okay, thank you ना. तो उस तब तो मैं ये भी बोल दूँ कि नानी नवा लम्बो ना, आपके लिए लम्बो आया थे लम्बो हो को जिना धोए वो ना, ना इतनी ऐसा इतनी जजिना ही चीज़ के तो भी अच्छी ना प्रांत हो तो कुछ ना, आये तो ऐसा इन्हें इन्हें प्राणे इन्हें बिचू इतनी इन्हें जो प्रोसीडिंग जो आहू ने ना, इचू एको बके करने वो आहू जीतो ने ना, अब इन्हें आगे मुझे तो काजवी होने प्राउजी ना, इन्हें मैं आहू तो आहू ते इन्हें जो आगे तो उसका वुजी ना. So with this, I would like to proceed with my presentation. Not exactly presentation, my point of view. तो सबसे बड़ा इशू ये है ना कि हम लोगों को मेंटल हेल्थ क्या है और ये है भी कि नहीं, उसका भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. ठीक है. जब whenever we talk about अरुणाचल ना, हम लोग जब भी ये कश्मीर को छोड़ दीजिए, एज अरुणाचल एज ए होल, हम लोग जब भी बात करते हैं ना, I always use one phrase कि हम लोग के साथ क्या हुआ ना कि बाईसाइकिल देखा नहीं कि सीधे स्कॉर्पियो में चला गया ना. एंड दैट इज नॉट हाउ द एवोल्यूशन वर्क्स ना. बाकी सोसाइटी लोग जो है वहां में क्या हुआ कि ना, पहले जो है वो लोग ने जो है ना, जो लकड़ी का पहिया बनाया होगा ना, बैलगाड़ी चलाया होगा, फिर स्टीम इंजन आया, बाईसाइकिल बनाया, उसके बाद छोटा मोटा गाड़ी में गया ना, उसके बाद जाके मॉडर्न कम्युनिकेशन में पहुंचा. तो दे हैड देयर ओन मॉडल ऑफ कल्चर. ठीक है, जिसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं ट्रेडिशन ना. ठीक है, वो लोग के पास अपना एक ट्रेडिशन था, सेट था पहले से ना, मतलब ओवर टाइम धीरे धीरे होकर सब चीज को एडजस्ट करके वो लोग के पास अपना एक चीज था, और वो लोग के पास जो है चेंजेस आ रहा था, उसके साथ लड़ने के लिए भी अपना पास कुछ था. तो वो लोग ने क्या किया ना कि उसके साथ एडजस्ट करके चेंज कर लिया. लेकिन अरुणाचल में क्या हुआ ना कि सडनली हम लोग जो है अधनंगा ही कहेंगे ना, वी वर हाफ नेकेड, राइट ना, हम लोग वी वर हाफ नेकेड, टू बी ऑनेस्ट लिटरली बारबेरिक ना मार का ही तो जमाना था ना, कि वो समय में जो है इनफैक्ट ये हम लोग का रे भी जो है, रे फेस्टिवल ना, जहाँ जो रे लाए जना आया है, it was used to be individual ceremony rather than a festival. It was only started in the year 1962 ना, ठीक है, as a community festival. Otherwise it was just a individual सेलिब्रेशन. और ये सेलिब्रेशन क्यों रखा जाता था? ताकि अपना रिश्तेदारों को ऑनर कर सके. वो समय में क्यों था? क्योंकि हम लोग बारबेरिक था. ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि हम लोग का सोसाइटी में जो है चेंजेस इतना सडन आया कि वी कुड नॉट इवन थिंक अबाउट रजिस्टरिंग इट ना, क्योंकि हम लोग के पास ऐसा कुछ मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग रहा नहीं था जिससे हम लोग जो है चेंजेस को हम लोग रजिस्टर कर सकेगा ना.
जिसका कारण से क्या होगा, हम लोग का आसपास का वो जो सोसाइटी का जो कंडीशन था ना, रहन सहन था, बात करने का तौर तरीका था, आपस में जो कनेक्शन था वो कंप्लीटली हिल गया, क्योंकि द होल सोसाइटी ऑफ योर्स वाज कंप्लीटली इररिलेवेंट टू द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। और उसके बाद मॉडर्न वर्ल्ड का तो क्या है, दे आर ड्रिवन बाय द इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। जो आपका पास नया नया टेक्निक्स लेके आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, वो लोग भी तो एक कोई महात्मा तो नहीं है ना कि आपका अच्छा के लिए ही लेके आ रहा है ना। कोई अपना पॉलिटिकल एम्बिशन से आता है ना, कोई अपना रिलीजियस एम्बिशन से आता है ना, कोई अपना इकोनॉमिकल एम्बिशन से आता है। तो जिसका चलते क्या हुआ कि ना हम लोग जो है उसको कोऑप नहीं कर पाया। और ऑब्वियसली ऐसा होता है ना कि बचपन में देखो किसी को चॉकलेट दे दो, बच्चा को थोड़ी ना चिंता रहेगा कि बाद मेरा दांत सड़ जाएगा ना। सिमिलर थिंग हैपेंड टू अस ना, हम लोग को लगा कि यही सब कुछ ठीक है ना, जिससे क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे जो है वो चेंजेस का साथ में जो है हम लोग जो है एडप्ट नहीं कर पाके सोसाइटी इतना मेस्ड अप हो गया कि हम लोग का ऑक्यूपेशन चेंज हो गया, हम लोग का रहन सहन चेंज हो गया, हम लोग का जो पहले का जो बॉन्डिंग था, जो सिस्टम था, वो कंप्लीटली चेंज हो गया। और उसके बाद में जो है ऑन टॉप ऑफ दैट उसके बाद क्या हुआ कि अब हम लोग का इंटरनेट इतना आगे बढ़ गया कि वी हैव प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिसलीड ही करेगा ना। जैसे कि सबसे बड़ा ये मिथ ये है ना कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो है बच्चा चाहो तो कुछ भी कर सकता है ना। ये हम लोग को मालूम है, ठीक है, ज्यादातर बच्चा को मालूम है, सबको मालूम होना है कि ये हम लोग को पता है कि ये कुछ भी कर सकता है। वहां में इंडिविजुअल लिबर्टी बहुत खतरा से है, लेकिन वहां पे ये भी तो है ना कि 18 का बाद आप अपना माँ पिताजी के साथ नहीं रह सकता है, आपको घर से लात मार के निकाल दिया जाता है ना, ठीक है। लेकिन हम लोग का यहाँ का बच्चा का दिमाग में क्या है कि वहां का अमेरिका और यूरोप का जो है इंडिविजुअलिटी हमको भी चाहिए, वो आप गेन नहीं कर सकते यहाँ में। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस भी तो आपको हासिल करना पड़ेगा ना। तो ये सब जो है बहुत सारा ऐसा चेंजेस आया कि हम लोग का सोसाइटी में जो है मतलब हम लोग का सोसाइटी जो है इसको कोप अप नहीं कर पाया, ठीक है। मेन वजह यह है, इसलिए कि हम लोग का यहाँ पे क्या है कि सुसाइडल केसेस तो व्हेन इट कम्स टू ईद में आपको तो बोलना ही नहीं है ना कि अरुणाचल में तो क्या आजकल तो नेशनल लेवल में इवन इंटरनेशनल लेवल में हम लोग को ये पता चल रहा है कि और सबको ये पता चल रहा है कि ईद में सुसाइड रेट सबसे हाई है, जबकि पहले समय में देखा नहीं गया था ना, ठीक है। वो समय में क्या था, क्यों कमिंग बैक टू माई लाइक प्रीवियसली पॉइंट दैट आई हैव मेंशन कि हम लोग का सोसाइटी इतना चेंज हो गया ना कि जो हम लोग का सिस्टम था और अभी का जो नया सिस्टम है उसमें हम लोग का जो है जंक्शन कंप्लीटेड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज का जमाना में जो है पेरेंटिंग में जो है व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग ना दे आर लाइक मेड विद सो मेनी कॉम्प्लेक्स थिंग्स। हम लोग का ऑक्यूपेशन इतना चेंज हो गया ना कि पहले तो क्या होता था ना, खेती जाओ, सुबह उठ के जाओ, खाना पीना करो ना, आपका कोई ना कोई घर में होगा, एल्डरली होगा, वो बच्चा का ख्याल करेगा। ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दे वुड बी नरेटिंग द स्टोरीज ना, पुराना जमाना का कहानी बता रहा होगा जिससे कि बच्चा सीख रहा होगा, घर वापस आएगा पेरेंट्स, तो उतना ही तो था ना, जिंदा रहो खाओ पियो ना, बस उतना ही तो था। लेकिन आज के जमाने में क्या हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मम्मी टीचर है ना, पापा कॉन्ट्रैक्टर है या कोई पॉलिटिशियन है ना, कोई इंजीनियर है ना, तो वहां पे जाके पैसा कमाएगा, अपना काम करेगा या फिर बच्चा को देखेगा। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि बच्चे को हॉस्टल में फेंक दो ना। 99% का सोल्यूशन तो यही है ना कि बच्चा को हॉस्टल में फेंक दो, वो लोग देख लेगा ना। बहुत बार तो ऐसा भी होता है, इसीलिए तो हॉस्टल में भेजता ज्यादातर ना, ठीक है। और उसका एक दो रेयर केसेस में आता है कि बच्चा बहुत बदमाश हो रहा है, हॉस्टल में जाके कुछ सीख लेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग का सोसाइटी जो है ना इस कदर चेंज हुआ कि हम लोग का पेरेंट जो है क्या है कि वो जमाना का इंसान है जिसको ये जो इमोशनलिटी, ये जो प्रीवियस पैनलिस्ट लोग जो डिस्कस कर रहा था ना कि वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस वो लोग का कुछ खास नहीं है, वो लोग का जो इमोशन और जो प्यार है ना वो अलग है, ठीक है। और अभी का समय का जो रिक्वायरमेंट है वो प्यार और वो इमोशन अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी डोंट इवन हैव द कांसेप्ट ऑफ आई लव यू इन ट्राइबल ना, उससे पता चलता ना कि वी आर सो रिजिड ना कि जिंदा रखो इसको ना, खाना खिलाओ, दैट वाज द लव एंड केयर, राइट। हम लोग का पेरेंट्स के लिए वो था। तो लेकिन हम लोग का समय में क्या है ना कि अभी ख्याल करना है ना, खरीद के भी लाना है, पढ़ाना है ना, उसको प्यार भी जताना है, उसको पता भी होना है कि आई लव देम, लेकिन ज्यादा भी पता नहीं होना है, ज्यादा पता चल गया तो फिर बिगड़ जाएगा, राइट ना। तो ये है मेन इशू ना, सोसाइटी इस कदर चेंज हुआ ना कि इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ कि जो हम लोग का पेरेंट्स था वो लोग का माइंडसेट कंप्लीटली अलग से आया वाला एक जनरेशन है, और हम लोग का नया जो जनरेशन है वो कंप्लीटली अलग है, जिसका डिमांड्स को जो है अभी पेरेंट्स लोग भी जो है वेरी फॉर्चुनेट चिल्ड्रंस आर दोस जिसका पेरेंट्स ये बात को समझ पाता है। एंड आई कैन बेट कि ईद मिशमी का अंदर में जो है 10-12 फैमिली के अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं जो ये चीज को समझ सके। और उसमें उसका गलती भी नहीं है ना, उसका गलती भी नहीं है। क्यों? the way we think, the way we act, the way we speak depends on the culture that we grow up.
हम लोग जो कल्चर में ग्रो होकर तो उसी से होता है, तो उसमें जो है वहां पे ना दोनों तरफ से गेटिंग आ जाता है ना। एक तरफ पेरेंट्स ये नहीं समझ पाता कि आजकल का बच्चा लोग का रिक्वायरमेंट्स अलग है ना, ठीक है, वो लोग जो है इमोशनल लेवल में कहीं अलग है, जिसको जो है आपको उनका तरीका से समझाना है, ठीक। और दूसरा तरफ जो बच्चा लोग स्पेशली द एडोलेसेंस ना, जो क्लास 5, 6 से लेके 11, 12 तक, उनका बच्चा को ये कंसेप्ट नहीं है कि उनका माँ पिता जो है कौन सा जमाना पैदा हुआ ना, वहां समय में तो आप मार काटना हो जिंदा रहो वही तो प्यार था ना, बचा के रखो, राइट। तो यहाँ पे दो जनरेशन जो है ना एक दूसरे को मैच नहीं कर पा रहे ना। दैट इज व्हाई आई से कि ना बाइसाइकिल के बिना सीधा स्कॉर्पियो में जंप कर देना तो एक्सीडेंट तो होगा ही है तो ना, क्योंकि आपको तो पैदल से टर्बो इंजन में तो लगेगा ना शॉक, इट हैपेंस, राइट, दैट इज नेचुरल। तो इसीलिए क्या होता है ना कि अभी का समय में जो है ना कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, दैट इज द मेन इशू ना। मतलब देयर में बी सम टेक्निकल एस्पेक्ट्स और सब लोग का नजरिया अलग हो सकता है, बट व्हाट आई बिलीव और व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इसकी यहाँ पे जो है ना जंक्शन नहीं बन पा रहा है प्रॉपर ना। तो नाउ कमिंग टू योर मेन क्वेश्चन, तो व्हेन इट कम्स टू द टेक्निकलिटीज, व्हाट आई बिलीव इज the very thing that we are part of it, the program that you have established today, that is a very good beginning ना, ये बहुत अच्छा बिगिनिंग है। शुरुआत ऐसा ही होता है ना, जैसे ही होता है ना बूंद बूंद से सागर बनता है, बोलने में तो बहुत फेंकू लगता है ना सुनने के लिए, लेकिन इट हैपेंस, राइट ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ स्पार्क, राइट। तो ये एक तरीका है, यहाँ से आप जो है लोगों को भी पहुंच सकता है ना। आजकल तो वैसे भी फेसबुक में देखना तो सबको अच्छा लगता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये स्ट्रीम को जो है फेसबुक में देखने को बोलो तो आपको क्या पता ना 400-500 मिल जाए, लेकिन यहाँ पे बुलाया जाता तो 10-12 से भी नीचे नहीं आएगा, टॉपिक सुन के तो और कोई भी नहीं आएगा, राइट ना, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं परसों का जो डे 1 का सिंपोजियम है, वी हैव garnered around 21K viewers. ओके People are engaging online. ओके सो तब तो और भी अच्छा माहौल बन गया हम लोग के लिए कि ये बताना है ना कि जंक्शन जरूरी है, राइट। तो टेक्निकली आई एम नॉट अ वेरी लाइक टेक्निकली दैट साउंड, और कि हम जो है फील्ड में इतना काम नहीं है, लेकिन सिंस आई हैव बीन डीलिंग विद सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी के अंदर में भी एक पेपर होता है हम लोग का सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन ना, जहाँ पे हम लोग जो है यूजुअली वही देखते हैं कि हेल्थ सिस्टम कैसे काम करता है वगैरह। लिविंग असाइड दैट, व्हाट आई फील कि हम लोग का जरूरत क्या है, सबसे पहले को जो हमने जंक्चर जो बात किया ना, जिसमें जो कनेक्शन नहीं बन पा उसको समझना है, ठीक है, पेरेंट्स को भी समझना है, और जो बच्चा लोग है ना उसको भी समझना है कि आपका पेरेंट्स का सोचने का तरीका जो है अलग जमाना का है, तो उसका नजरिए से, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, ठीक है। और उसके बाद में पेरेंट्स को भी ये समझना है कि आजकल का जमाना का जो नजरिया है, पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग है। सबसे पहले जो है ये चीज को जो है इंश्योर करना है कि अंडरस्टैंडिंग होती, उसके बाद जो है जैसे अभी सिंपोजियम है, सेमिनार है ना, उसको जो है जगह जगह में जाके ना, स्पेशली जहाँ पे डिस्टर्ब एरिया है ना, ठीक है, जहाँ जहाँ पे जो है केसेस ज्यादा है वहाँ पे जाके ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है। और उस तरह लाइक आई कम अक्रॉस वन रिसर्च, जैसे कि the one who was supposedly invited for the panel, very unfortunately he could not make it in time. तो जैसे कि तरुण सर ना, तरुण मैने सर, he himself is working on a project called multi-state implementation research study on suicide risk reduction and improving mental well-being among the school and colleges, ठीक है। तो जैसे कि it is funded by Indian Council of मेडिकल रिसर्च, तो उसी तरह का रिसर्च भी कर सकता है ना। हम लोग को यहाँ पे जो कम्युनिटी लेवल में जो स्कॉलर्स है, वैसे भी आजकल तो पढ़ा लिखा इंसान तो बहुत सारा निकल गया ना, वो लोग जो है क्या कर सकता है, डायरेक्टरेट में जाके ना, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके दे कैन अप्लाई कि हमको इसमें रिसर्च करना है। क्यों? इससे क्या होगा कि हम लोग के पास एक कम से कम मिनिमल ही सही एक प्राइमरी डाटा हो जाएगा, जिससे कि हम लोग काम शुरू कर सकेगा, राइट। कम से कम अंधेरा में ना तीर मारने से बेहतर तो आपको अच्छा कम से कम ये तो पता चलेगा ना कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है ना, कितना कितना नंबर्स में है। तो ये हो गया, ठीक। आप एक प्रोजेक्ट एज ए इंडिविजुअल वेंचर आप ये कर सकता है, राइट। और दूसरा बात प्रॉब्लम क्या है ना कि अरुणाचल में वो भी इसी से ही रिलेटेड है कि हम लोग का जितना पॉलिसीज और जितना प्रोग्राम्स है ना, वहाँ पे क्या है कि स्पेशलिस्ट का कमी रहता है, ठीक है। स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश ना, हम लोग का यहाँ स्पेशलिस्ट है ही नहीं। और प्रॉब्लम ये है ना कि जो दिल्ली और मुंबई में बैठ के जो कुर्सी में बैठ के जो पॉलिसीज बनाता है ना, इन एनी रिगार्ड सोसाइटी को लेके ना, पॉलिटी को लेके, एजुकेशन को लेके ना, इकोनॉमी को लेके, वहां पे क्या है ना कि दे डोंट नो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकल कॉन्टेक्स्ट, राइट ना। ये लोकल कॉन्टेक्स्ट में कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, उसको नहीं समझता है। तो वो लोग जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, जो पॉलिसीज बनाता है, वो हम लोग का यहाँ ट्रिकल डाउन होते होते जो है वैनिश हो जाता है ना। It cannot get the result which they intended ना, ठीक है। ऐसा भी होता है, ठीक। लेकिन हम लोग के पास अभी इतना मैन पावर नहीं है कि इतना वेल इक्विप्ड इनफ नहीं है कि हम लोग वहाँ पे जाके हम लोग मेंबरशिप अपना लिए ला सके, वो तो पॉसिबल नहीं है।
तो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग जो है गवर्नमेंट से सिफारिश कर सकता है, और या फिर एज अ कम्युनिटी बेस हम लोग जो है ये कोशिश कर सकता है कि जो स्पेशलिस्ट का जो कमी है ना उसको जो है हम लोग अपना कम्युनिटी हेल्प के थ्रू वो लोग को कंपेंसेट कर सकेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है, उसको हम लोग जो है अपना तरफ से एड कर सकेगा। ठीक है, देन ओनली वी कैन अचीव समथिंग ना। उसके अलावा जो है व्हाट वी कैन डू इज हम लोग जो है ऑब्वियसली वो तो हमेशा ओपन रहता है कि स्कूल का कैरिकुलर और कुछ कुछ एक्टिविटीज में हम लोग जो है उसको इंक्लूड कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर दैट आई वुड लाइक टू अपलोड द ट्रायल्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द मैडम हरसेल्फ ओनली। उनके स्कूल में आई हैव कम अक्रॉस की मतलब वो भी कुछ कुछ ऐसा प्रोग्राम कराते रहता है। और जैसे कि ये मैडम तो शी हैज बीन इन कांटेक्ट विद द चिल्ड्रन। ठीक है, और उस तरह जो है उसी तरह यहाँ पे वी हैव स्कूल फ्रॉम आवर ओन एल्डर ब्रदर और रास्ता में ना उनका स्कूल है, उसमें कुछ कुछ ऐसा प्रोग्राम कराते रहता है ना कि कभी कभी जो है कुछ डेमोन्स्ट्रेशन कर देगा ना, कुछ एक प्ले दिखा देगा, वो लोग कुछ कहीं भी पार्टिसिपेट उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द like some easy and small steps by adopting by which we can achieve up to like certain extent improvement up to certain extent। ठीक है, और उसके बाद में 100% solution तो it is never possible है ना, ये तो आपको ही पता है, हम लोग को पता है। but what we can do is we can minimize the instances of such mental illness ना। तो जिसका शुरुआत सबसे पहले क्या है, हम लोग को समझाना है कि हेल्थ क्या होता है। Okay, I'll come back to you later. I'll go to panelist number 4. तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो कि आप सोसाइटी का एक ईदो मिश्मी कल्चर लिटरेरी सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट भी है, एंड एट द सेम टाइम यू हैव सीन द जनरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स। पास में आप जो बैठा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि आपका स्टूडेंट रहा है, तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो डिफरेंसेस आपने देखा है वो ज़माने के स्टूडेंट्स और अभी के जो ज़माने के स्टूडेंट्स हैं, और जो डिफ़िकल्टीज वेदर उस समय का जो स्टूडेंट्स का मेंटल स्टेटस किस तरह से रहता था और अभी का क्या सिचुएशन है, तो उसमें तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा हाईलाइट करें। देन विल मूव ऑन टू अदर टॉपिक्स लेटर ऑन। Thank you. First of all, thank you CRCC 25 जो मुझे यहाँ आप लोग के सामने बैठने का मौका दिया है, और सभी पैनलिस्ट को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। और मैं स्पेशली बच्चा लोग को अभी जो यहाँ पे मौजूद है और जितने भी ऑनलाइन पे हैं, मैं तो ये सिंपोजियम एज ए पैनलिस्ट यहाँ आने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये बहुत बड़ा हॉल पे होना चाहिए था, जहाँ पे कम से कम क्लास 5 से लेकर क्लास 12 के जितने भी सारे बच्चे हैं उनके मौजूदगी में ये सब होना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। और इस चीज़ को मैं कमिटी में मेरे छोटा भाई है अलिया मदन मिले को भी मैं सेम रिक्वेस्ट करूँगा कि ये फेस्टिवल के दौरान नहीं होने से भी बाकी टाइम हम इसको बहुत अच्छा से कैरी आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को मैं अपना जो जर्नी है, जो हमारा जनरेशन्स का जो डिफरेंसेस है, जो गैप है, और हमारे टाइम पे कैसे स्कूल जाते थे, कैसे हम स्कूल पे रहते थे, हम क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट ये जो है मैं उसको थोड़ा सा बताऊंगा आप लोग को। हो सकता है आप लोग जितना यहाँ पे क्लास 4, क्योंकि आजकल का बच्चा जो है ना क्या है कि बहुत हाई टेक पैदा होता है क्योंकि अभी जैसे कि बहुत चर्चा हुआ है जो AI का ज़माना है, तो उस हिसाब से आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। तभी भी यहाँ पे क्लास 3 से लेकर अनदर जो हायर क्लास के जितने लोग हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे 1-2 बात आपको इंस्पिरेशन, मेरे 2 बात से आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो, ठीक है। तो है ना क्या है कि बहुत हाई टेक पैदा होता है क्योंकि अभी जैसे कि बहुत चर्चा हुआ है जो AI का ज़माना है, तो उस हिसाब से आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। तभी भी यहाँ पे क्लास 3 से लेकर अनदर जो हायर क्लास के जितने लोग हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे 1-2 बात आपको इंस्पिरेशन, मेरे 2 बात से आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो, ठीक है। तो हमारे ज़माने में जो है हुआ क्या करता था, एक गवर्नमेंट स्कूल होता था
जहाँ पे हम बिना चप्पल के, बिना हाफ पैंट के स्कूल जाते थे। ये आप बिल्कुल सुनिए। उस जमाने 1987-88 की बात है, जब मैंने स्कूल पे दाखिला लिया था। When I got admission in the school, मेरे पास चप्पल भी नहीं था। उस समय का जो आज का जो आपका पेरेंटिंग की बात हो रहा है, मेरे मम्मी, मेरे माँ और मेरे पिताजी को मेरे को पढ़ाना है, लिखाना है बोल के भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था उस समय। हमारे गांव के सामने लगभग 6-7 किलोमीटर पे एक स्कूल खोला था, जहाँ पे नियम था कि मैं भी आप लोग के एज का जैसे जब होने के बाद हमारे माँ पिताजी ने सोचा कि स्पेशली मेरा जो चाचा जी गुजर गए हैं, उसने सोचा कि नहीं, इनको भी स्कूल में डाला जाए, है ना। तो मुझे थोड़ा सा याद है, मैं विदाउट हाफ पैंट में स्कूल आया था उस समय, विदाउट हाफ पैंट, चप्पल नहीं हुआ करता था उस समय। तो ऐसा करते करते हम लोग उस वक्त का जो एजुकेशन सिस्टम है, टीचर्स इतना आजकल तो आपके पास इतना क्वालिफाइड, इतना अच्छा टीचर्स आपको मिलता है, इतना अच्छा फैसिलिटीज आपको मिलता है। उस समय हमें खाने के लिए सिर्फ भात मिलता था, सफ़ेद भात के साथ में वो नमक मिलता था, नमक। उसके साथ में कभी कभी दाल मिलता था या तो नहीं मिलता, मोस्ट ऑफ द टाइम दाल तक हमें नसीब नहीं होता था, है ना। तो उस समय जो है हमारा क्या था कि हमारा स्ट्रगल ये जो मेरे मन में नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन हम वही कर रहे थे उस समय, क्योंकि हमारा माँ पिताजी को ये मालूम नहीं है कि मैंने अपना बच्चा को स्कूल में छोड़ दिया, अभी मेरा बच्चा कितना क्लास में है वो भी उसको पता नहीं है। और बहुत दुख की बात है, मैं अपना पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका भी हालत तो ऐसे ही है ना, उसको हमको समझना पड़ेगा, है ना, हमको समझना पड़ेगा। हम उसको ब्लेम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो एजुकेट नहीं है, उसने दुनियादारी देखा नहीं था। जस्ट बच्चा पैदा करना है, खेती बाड़ी करना है, अपना बाल बच्चों को पालना है, बड़ा करना है, और फिर जाके फिर खेती करेगा, वो खेती करके फिर हमको खिलाएगा। वो मेंटेलिटी लेके हमको पाला है, पोसा है ना। तो उस समय जो है स्ट्रगल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम बाई चांस पास होते गए। इसके बाद क्लास 7-8 आने के बाद हमारा जो पेरेंट्स का हालत ऐसा था कि कुछ, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल हम लोग के जो जिंदगी में जो गुजरा है उस दौरान, उस समय की बात कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो हम तो पास होते गया। इसके बाद में हमारा माँ और पिताजी के पास कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, और वो सोचता था कि बेटा फेल हो जाए तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, राइट। वो सोचता था बेटा फेल हो जाए तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों सोचता था? क्योंकि फेल होगा तो घर में बैठ के जंगल काटेगा, खेती करेगा, लकड़ी बुकेगा, सुअर दाना, मैडम ने बोला सुअर दाना लाएगा, तो उनके लिए एक हेल्प हो जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली वो एक पेरेंट्स के हिसाब से हमारे ऊपर जो होप कर रहा है वो भी गलत तो नहीं है, लेकिन हमारा जिंदगी तो दूसरा होना है ना। हम उसी जिंदगी जो हमारे जो माँ पिताजी ने जो जिंदगी गुजरा है, हम इस तरह तो नहीं गुजर सकते ना। सो दैट इसके बाद क्लास 7-8 आने के बाद हम लोग क्या करता था, माँ पिताजी के पास तो पैसा नहीं था। आपको विश्वास नहीं होगा, क्लास 6-7-8 तक हमारे पास चप्पल नहीं हुआ करता था, जूता तो छोड़ दीजिए। ये बहुत सारे लोग का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जो मैंने अपने आंखों से देखा है, और मैंने भी अपना जिंदगी अपना आंखों से देखा, मैंने खुद महसूस किया है ना। तो उस समय में हम लोग क्या करते थे, किसी का सैंड बुकते थे, सैंड मतलब बालू बुकते थे, जिससे हमें 50 रुपया, है ना। इनका भी एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। किसी का लकड़ी बुकते थे, है ना, और किसी का जो हैंड स्विंग से जो लकड़ी काटता है, ये जो घर और बनाता है, वो हम लोग क्या करता था, कैरी करते थे। उससे क्या होता था, हमारा पढ़ाई का खर्चा चल जाता था, जिससे हम अपना पेन
पेन, लिखने का पेन, जो कॉलम है, कॉपी है, उसको हम खरीदते थे। तो एट दैट टाइम हम लोग स्ट्रगल करते, स्ट्रगल। रोड नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था। हाँ, हॉस्टल में आज का डेट में आप लोग के लिए इतना सारा फैसिलिटीज है। देखिए उस समय हम लोग ये जो बाम्बू है ना, ये बाम्बू, सूखा बाम्बू लेके दिन में लेके आता था हॉस्टल में। दिन में हमारा डिटेल होता था कि आज सूखा बाम्बू लेके आना है, जो रात को हॉस्टल पे जला के पढ़ना है। इसके बाद थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, केरोसिन आया, जिससे हम लोग क्या करता था, बोतल पे जो छेदा करके उसमें बस्ता डाल के हम लोग जला के बैठते थे। जब हम पढ़ते थे, एग्जाम का समय में हम पढ़ते थे, तो वो जो केरोसिन जो धुआं निकलता है उसको हम इनहेल करते हैं ना, इनहेल। तो उससे क्या होता था, हमारा नाक भी सुबह तक काला हो जाता था। हाँ, कभी कभी हम लोग नींद में हम लोग पढ़ते थे इस तरह से। जब हमको नींद लगता है ना, तो ऐसा करते हैं ना, तो हमारा बाल जल जाता था, है ना। तो इस तरह से हम लोग ने अपना जो एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है, क्लास 1 से क्लास 6, 7, 8 तक, इस तरह से हम लोग ने पढ़ाई की है। एट दैट टाइम स्ट्रगल, ये चीज मान पे रखे, स्ट्रगल। लेकिन अभी आपके पास बहुत सारा सुविधा है। आपके पास जूता है, आपके पास चप्पल है, आपके पास पेन है, आपके पास कॉपी है, आपके पास इतना सुंदर सुंदर यूनिफॉर्म है, आपके पास लाइट है, एवरीथिंग। अभी आपको क्या करना है? मेहनत करना है। क्या मेहनत करना है? आपका क्या ड्यूटी है? स्टडी। क्या ड्यूटी है? स्टडी। आपको मेहनत करना है। आपको क्या लगा कि हमारा कहानी सुन के आपको कैसा लगा ना? अभी आप महसूस कीजिए आपके पास क्या है। मैंने जो कुछ भी कहा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो अभी आपके पास क्या है आप महसूस कर रहे हैं ना? क्योंकि एवरीथिंग यू हैव, आपके पास सब कुछ है। आपके माँ पिताजी स्ट्रगल करते हैं अभी आपको एक अच्छे स्कूल में भेजने के लिए, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, आपको एक अच्छा बेटी बनाने के लिए, आपको एक अच्छा बेटा बनाने के लिए। वो अभी आज का जो पेरेंट है वो स्ट्रगल करता है। उस समय में हम स्ट्रगल करते थे पढ़ने के लिए, फेल नहीं होने के लिए, नहीं तो कल को हमको माँ पिताजी ने काम पे लगा दे, खेती पे लगा दे। उस समय में हम स्ट्रगल करते थे घर वापस नहीं जाने के लिए। अभी आप मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी आपका आपका पेरेंट्स आपके लिए मेहनत करता है ना। अभी आप जहां पे खड़ा है, कोई क्लास 1 पे है, कोई क्लास 8 पे है, कोई क्लास 7 पे, उस गैप को, मान लीजिए मैं पेरेंट हूं, आप स्कूल में है, और ये जो गैप है ना, इसको आप महसूस कीजिए। और इस गैप में ना आपका मम्मी का मेहनत है, आपका पापा का मेहनत है इस गैप में, लेकिन आपको पता नहीं है। नहीं, मैं तो मम्मी ने जबरदस्त स्कूल भेज दिया, पापा ने जबरदस्त स्कूल भेज दिया, मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे दिल नहीं है, मुझे पढ़ लिखने का मुझे बिल्कुल मन नहीं है। ये महसूस आपको अगर हो रहा है ना, ये तो बहुत गलत बात है। अगर आपने मेहनत नहीं करके कुछ नहीं बन पाया ना, कल आप कहीं पे ये क्या बोलता है ना, वो जो दिन में जो काम करता है ना, हाजिरा, सोच के देखिए। बिकॉज आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो आपका जो पेरेंट्स आपके लिए जो मेहनत कर रहा है। अभी आपको क्या करना है, जो स्पेशली क्लास 6, 7, 8 में जो बच्चा है, उसको मैं बताना चाहूंगा। क्लास 8 तक आ गया, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ड्रीम, योर पर्पस एंड फोकस। क्योंकि अभी आप लगभग 14-15 इयर्स का हो चुका है ना। तो अभी आपका काम है स्टडी। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई। यहां से क्लास 8, स्पेशली क्लास 8 में आने के बाद आपका, क्योंकि आदमी का जिंदगी में अगर ड्रीम नहीं होगा ना, ड्रीम सपना नहीं होगा, सपना मतलब मुझे क्या बनना है, अभी से आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा।
आपको मैथ्स में अच्छा लगता है, आपको साइंस में अच्छा लगता है, आपको इंग्लिश में अच्छा लगता है, आपको हिंदी में अच्छा लगता है, आपको सोशल स्टडीज में अच्छा लगता है ना। जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा लगता है आपको वहां से सोचना पड़ेगा कि मैं आगे पढ़ के मैं क्या बनना चाहता हूँ। पैनलिस्ट नंबर 4 से मैं टू बी प्रिसाइज टू द क्वेश्चन मैं आपको फिर ये रिमाइंड करना चाहूँगा कि जो यू बीइंग फर्स्ट जनरेशन टीचर जो कि आप एजुकेटेड है और अपना बच्चे लोग भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहा है, तो वो समय का जो स्टूडेंट्स जैसे आप वन ऑफ द एग्जाम्पल और अभी का जो जनरेशन के बच्चे लोग होते हैं उनका मेंटल स्टेटस में आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ डिफरेंसेस जो कि मैं चाहता हूँ कि आप हाईलाइट करें। जी जी ये जो उस समय का जो बच्चा ना और आज जो मेरे बच्चे हैं उसका बीच का जो डिफरेंसेस तो मैं तो इतना कहूँगा कि आज उस समय का जो डिफरेंसेस बहुत जेनरेशंस का गैप है, ये जेनरेशंस का डिफरेंस है। आज का अगर स्पेशली मैं अपने घर में मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि मेरे दो बेटी हैं और एक बेटा है। सबसे बड़ा बेटी है क्लास 11 में है और सेकंड जो बेटा है क्लास 7 में है और लास्ट जो बेटी है क्लास 1 में है। तो इनका जो डिफरेंसेस है, इनका जो सोचने का जो समझने का जो डिफरेंसेस है उस वक्त का जो हमारे समय में होते थे या ड्यूरिंग में जब टीचिंग करता था। अभी आप यहाँ पे देखें ये लेक्चरर है, ये मेरे स्टूडेंट है ना, मैंने इनको पढ़ाया है। सो टुडे आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी मैं जब टीचर बना तो मैं एक लेक्चर प्रोफेसर में प्रोड्यूस कर सका, है ना। बट मैं आज की बात अगर कहूँ तो आज का जो बच्चों में क्या है कि इसलिए उस वक्त से बहुत अंतर इसलिए है कि आजकल पेरेंटिंग जो कॉन्शियसनेस आया है पेरेंट्स के अंदर में, तो उस हिसाब से आजकल का जो बच्चा का जो मैंने जो पहले बोला जो सोचने का है, समझने का है, एवरीथिंग रीजनिंग जो है वो फार बेटर है, वो हाई टेक है ना। तो अभी जैसे कि आज का डेट में क्या है कि बच्चों को हम बहुत स्पेशली हम अपना घर के जो माहौल है मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ पे। हाँ जैसे कि हमारा छोटी बहन ने बोला कि हम लोग एज ए नॉर्मल हम बहुत पढ़ा लिखा पेरेंट्स भी नहीं है बट एक बेसिक एजुकेशन हम लोग के पास है, तो हम अपने बच्चों को हम बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं एक्चुअली, है ना। तो उसका जो कैपेसिटी के हिसाब से हम उसको जस्ट गाइड करते हैं, हम उसको जस्ट चलने देते हैं और लेकिन स्टीयरिंग हमारा हाथ में है। हाँ तो आज का डेट में बहुत सारा जैसे मैं उन लोग को गाइड करता हूँ स्पेशली। हाँ ओबियसली ये जो मोबाइल जो है वो तो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट तो करता है बट इसमें सब कुछ है। तो आजकल के बच्चों में जो है जो कॉन्शियसली इसको यूज करता है ना, तो वो बच्चा ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। हाँ क्योंकि उस जमाने में क्या था कि दुनियादारी जो है हमारा हाथ में नहीं हुआ करता था। तो आजकल का आज लास्टली मैं एक मैं अपने जो बच्चों को जो मैं सजेशन देता हूँ उसको मैं यही बोलता हूँ कि देखिए मोबाइल इंटरनेट का दो ही काम है, एक आप खराब काम कर लो, एक आप अच्छा काम कर लो ना। लेकिन एक छोटा बच्चा को नहीं बोलेगा, अभी जो क्लास 5, 6, 7, 8 का जो बच्चा है इसको मैं बोल रहा हूँ या तो आप इससे खराब काम कर लो या तो आप इससे अच्छा काम कर लो, चॉइस आपका है, आपको क्या करना है। ओके टू द पैनलिस्ट नंबर 3। आजकल इस तरह का प्रैक्टिस चल रहा है पैनलिस्ट नंबर 3 कि आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, फाइनेंशियली आप साउंड नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सोसाइटी में इस तरह का एक प्रैक्टिस चल रहा है कि मेरा बच्चा को बेस्ट स्कूल्स में भेजना है, अच्छा और बेस्ट स्कूल भी, मतलब इसमें भी इस तरह का एक कंपटीशन है, मेरा किसी नेबर का बेटी जो गुवाहाटी में पढ़ा तो मेरा दिल्ली में भेजना है, इस तरह का। तो मैं
आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इज दिस अ हेल्दी प्रैक्टिस, ये क्या सही है? क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हो, पेरेंट्स के बारे में भी आपका अच्छी तरह से मतलब इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स लोग के साथ भी, तो मैं चाहूँगा कि ये टॉपिक पे भी आप थोड़ा हाईलाइट करें। हम हाँ स्कूल चला गया तो 25 साल हो ही गया मेरा। आने वाला साल को नानी मारिया 25 साल होगा, सिल्वर जुबली होगा। तो इतना 25 साल में हमने देखा है कि पेरेंट्स स्कूल को लेके बहुत हंटिंग होता है, वो मीन्स एक जगह नहीं रहता है लोग। फॉर एग्जांपल इस बार नानी मारिया में एडमिशन लिया, कल को बोलेगा पेन ड्राइव में ऐसा चल रहा है, वहाँ का टीचर बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, कल वहाँ जाकर डाल देगा। फिर कल को बोलेगा नहीं उधर से तो रिच व्यू बहुत अच्छा है, रिच व्यू में, तो वो पेरेंट्स फिर रिच व्यू लेके जाएगा। फिर रिच व्यू से बोलेगा नहीं इंटायर स्कूल में क्लास 12 तक है, वहाँ पूरा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पढ़ाना है, हेडेक नहीं है, फिर वहाँ चला जाएगा। तो ये ऐसे 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 करते रहता है कोई तो। और सही भी है पेरेंट्स लोग का, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि अपना बच्चों को हर चीज़ दे। और ऐसा भी है कि पेरेंट्स लोग की एक ही दिन में सब डाले, एक ही दिन में सब माथा में डालने से फिर वो बच्चा को भी हेम्पर हो जाता है, उसको बर्डन भी होता है। लेकिन भी वो पेरेंट्स लोग का किसी किसी का आदत ही होता है कि वो बच्चा का इधर में डाला है, वो अपना कलीग्स में होता है। फॉर एग्जांपल अभी स्कूल में KG1 में जब मेरा KG1 में पेरेंट्स था, मेरा बेटा जब फर्स्ट ईयर KG1 में था तब डिवाइन वर्ड के हम पेरेंट्स थे। तब बरामदा में एक पेरेंट्स हाथ ऐसा करके बोलेगा मेरा बच्चा फर्स्ट रैंक आया है, तो दूसरा वाला बोला मेरा वाला थोड़ा 1 पॉइंट से पीछे हो गया ना, तो वो तीसरा वाला बोलेगा नहीं वो मेरा करेक्ट था, लेकिन वो इससे टीचर ने सर्कल कर दिया ना, नहीं तो मेरा ही बच्चा फंसाना था। तो घर जाके ये पेरेंट्स लोग अपने बच्चा को बहुत टॉर्चर फिर पढ़ाएगा। वो बरामदा में जितना पेरेंट्स का कंपटीशन हुआ है ना, वो कंपटीशन का असर बच्चा को पड़ेगा और बच्चा के ऊपर। और जब वो फर्स्ट रैंक वाला थर्ड चला गया, थर्ड वाला फर्स्ट आ गया, फिर उसमें फिर एक गेम क्योंकि हमने टीचिंग में था तो मैंने ये देखा है। और मेरा स्कूल में हम अपने आप को वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि मुझे बच्चा का मेंटल स्टेटस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका खुशी में लगता है। उनको हंसना, उनको खेलते हुए दौड़ते हुए, उनको खिलाना पिलाना, उनके साथ झूमना नाचना, हम लोग वो करते रहते हैं। क्योंकि स्टडी 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 पढ़ाई 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 पढ़ाई, हम उन्हें लगता है कि वो बच्चा का हेल्दी लाइफ होगा। अब हम जब छोटा था, जो कॉन्वेंट में हम थे, हमें वहाँ नाचने देता था, गाना गाने देता था, पोएम लिखने देता था। हम लोग का अंदर में जो दिल में जो बुरा बात है, जो दुख है, उसको एक्सप्रेस करने देता था। इसलिए अभी तक भी मैं करती हूँ वो एक्सप्रेस, और मुझे डर नहीं लगता है और मुझे शर्म नहीं लगता है कि एक्सप्रेस करना। हम लोग फेसबुक में नाचते हैं, इंस्टाग्राम में भी गाता है, नाचते हैं। और दिबंग पॉपअप का जब फर्स्ट एडिशन था, उसमें एक 13 कार्ड रीडर आया था, तो उसने बोला मुझे, मीन्स एक लड़की थी, मैडम आपका घर में नाचना गाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसने बोला है। उससे और एनकरेज हो गया हम लोग ना तो सारा घर में हम लोग हस्बैंड हो गया, बच्चा हो गया, टाइम गाना वाना निकाल के हम लोग नाचना गाना शुरू कर ही देते हैं। और बच्चा लोग को भी हम सोचता है पढ़ाई लिखाई तो है, उसमें मेहनत करना है, लेकिन खुश भी रहना है। आपको जो चीज़ से खुशी देता है, नहीं दूसरा को मार के खुशी देता है, वो वाला नहीं, दूसरा को मदद करके खुशी देता है, अच्छा बात करके खुशी देता है, मम्मी पापा को थोड़ा सा प्यार करके खुशी देता है, आप अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा करता है, हॉस्टल में वार्डन का बात सुनता है। हमेशा भी ओबीडियंट होना ऐसा भी नहीं है, लेकिन खुश, यू बी हैप्पी, खुश रहना है। अपना दोस्त के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने टीचर्स के साथ खुश रहना सीखो जिंदगी भर। और गाना तो गाओ, डांस तो करो, म्यूजिक तो करो, क्योंकि ये लाइफ में आप ऑफिसर बन गया, मुंह फुला के ही बैठते हैं, क्या फायदा है। ऑफिसर बन गया, अपना कलीग का साथ में गाना गाया, डांस किया, झूमा उमा। डांस इसलिए नहीं है कि वो गंदा पंदा वो घास का नीचे का आपको मेरा एक स्पेसिफिक सवाल था कि जो पेरेंट्स के बीच में जो कंपटीशन रहता है, मेरा बच्चा को जो कि इकोनॉमिकली खुद का कंडीशन ठीक नहीं है, कहीं से लोन लेकर के पढ़ा रहा है, या तो खेतीबाड़ी करके, या तो कुछ जुगाड़ू करके, या तो फिर डेली जो हजीरा जो चलता है। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहूँ, क्योंकि एक्चुअली हम लोग जो टॉपिक में रिवॉल्व करा मेंटल हेल्थ है, तो बच्चा का मेंटल हेल्थ के लिए, उनका पढ़ाई के लिए माँ बाप के अपना
मेंटल हेल्थ को सेक्रीफाइस करना सही है क्या? ये हेल्दी प्रैक्टिस है क्या? नहीं, क्योंकि पेरेंट्स देखिए- क्योंकि देखिए बहुत सारे स्कूल्स है, अच्छे अच्छे स्कूल्स है, लेकिन एक यहाँ पे क्या है कि एक स्टेटस का बात आ गया, अरे इनका बेटा वो अच्छा बढ़िया स्कूल्स में पढ़ाई करा तो मेरा भी वहीं पे भेजना है। लेकिन इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो खुद का हालत ठीक नहीं है। तो ये जो सिस्टम, ये जो नैरेटिव बोलूँ है, ये जो सोच जो चल रहा है सोसाइटी में, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक डाउन करें? आप ऐसे एजुकेटर, आप, मैं चाहता हूँ कि अभी टॉपिक में थोड़ा सा हाईलाइट करें। ये मैंने देखा, मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया। मैंने अपना बच्चा को दार्जिलिंग डाला, अपना स्कूल होते हुए भी दार्जिलिंग डाला, ताकि मुझे लगता था कि दार्जिलिंग डालो ताकि वो लोग का स्पोकन इंग्लिश अच्छा होता है और वो ICSE बोर्ड होता है तो बच्चा और ज़्यादा जान के आएंगे ना, और हम अपना स्कूल चला रहे तो बच्चा फ्यूचर में भी सीख के आएंगे। लेकिन जो स्कूल में मैंने मेरे बेटा को डाला वो स्कूल ठीक था, पढ़ाई वगैरह ठीक हो रहा था, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा था। लेकिन मेरा भी हैम्पर हुआ, जैसे कि थोड़ा लोन लेना पड़ गया, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट तोड़ना पड़ गया, थोड़ा हस्बैंड से भी तू मैंने, तू भी निकाल पैसा, यहाँ से भी निकाल, वहाँ से भी निकाल, फिर फ्लाइट में जाना, फ्लाइट में आना। वो देखा हमने कि बेटा तो सीख रहा है, लेकिन ऊपर से हम लोग का इकोनॉमिकली हम लोग हैम्पर भी हो रहा है। तो वो बेटा का हो गया, तो बेटा का तो हमको अच्छा लगा, रिजल्ट ठीक था, लेकिन कोरोना का वजह से उसको लेके आना पड़ गया। लेकिन बेटी को भेजा बाद में, बेटी को भेजने के बाद में तो हमको लगा वो मैंने गलत किया, क्योंकि जो सीख हम अपने स्टेट में अपना जगह में रख के हम सिखा सकते हैं, वो वहाँ जाके जो सीखना चाहिए था वो नहीं सीखा। मैं चाह रही थी कि वो अच्छा इंग्लिश बोले, इंग्लिश तो बोला नहीं, उल्टा नेपाली सीख के आया। और फिर जंक फूड ज़्यादा खाने लग गया। जंक फूड मीन्स इतना जंक फूड जो मीन्स वैराइटीज ऑफ पिज्ज़ा हो गया, चीज बोल्स हो गया, पता नहीं क्या क्या बोलने सामान, सबका खाने पीने का सब उसका डिमांड ज्यादा हो गया, पॉकेट मनी का ज्यादा हो गया। तो मुझे लगा नहीं, ये तो एक गलत ट्रेंड है, हमको ये गलत हुआ, क्योंकि बीइंग अ मदर और सूटकेस भर भर के हम सामान देते, 2 दिन में सामान गायब, चोरी हो गया ऐसा करके। तो फिर मेरा बेटी के गया, उसका सामान चोरी हो तो वो भी ले लिया दूसरा का। तो ये खराब ट्रेंडिंग था, तो हमको लगा नहीं होना नहीं चाहिए। तो मैंने बच्चों को निकाल दिया, निकाल के वही फीस में, वही पैसा में उसका मैथ ट्यूशन, साइंस ट्यूशन टीचर लगा दिया। घर में बैठ के पढ़ो, हमारे सामने रहो और रेगुलर स्कूल जाओ, और अभी सब ठीक ठाक है। हमको लगता है बाहर स्कूल भेजने से भी, अगर स्कूल को चॉइस करके देख लेना, अगर बच्चा सीख रहा है, अच्छा सीख रहा है, अच्छा कर रहा है तो ठीक है, धार बाकी मामले से भी चलेगा। लेकिन धार बाकी मांगने का बावजूद भी बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है, आपको पता चल जाएगा, वो 1-2 महीने में पता चल जाएगा कि आपका बच्चा का बिहेवियर से, आपका बच्चा का बोल चाल से नहीं सीख रहा है, तो आप निकाल ही दो, वही बेहतर है। Okay, so the panelist number 1, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, what is the impact of social media on this Gen Z generation? क्योंकि सोशल मीडिया एक तरह से बहुत अच्छा भी है, आपको फास्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, एक्सेस टू ग्लोबली भी कनेक्टेड। तो इसका इम्पैक्ट बच्चे पे कैसा असर पड़ रहा है, मेंटली एंड सोशली? Yes. क्योंकि मैं आपको सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि यू आर रनिंग एन NGO which is called AMIA NGO who runs an helpline, child helpline. तो आपको काफ़ी आइडिया होगा कि मतलब किस तरह से अपना सोसाइटी, स्पेशली इन इंडो मिशनरी सोसाइटी, लोअर दिबांग वैली, तो प्रैक्टिकली ऑन दैट बेसिस। 3 years of my stay in rowing, I have got to know so much about rowing, and also the people out there, the kindness they have and the struggle they share with their own people, right? So I think Gen Z as a general, they are struggling, to be honest. I think most of 90% of the population are using phone in a wrong direction, to be honest. And also the younger one, the one who are growing 2 years, 1 year, they have a speaking deficiency. The kids are not speaking, not able to speak, because their screen timing is more than their parents speaking to them. Their deficiency is there. I've seen the kids, they are not communicating despite being they are 4 years old, right? It's because of over screen timing they have given to the child from the parents. It's that they are engaged. I know that parents are so struggling to manage their child, because most of them are like in office,
they are working on for incomes, right? So I think at the same time it is compromising the life of child that is growing right now, and also the I think little bit of check into the kids what they are using and which like history they're using, right? Chrome का एक history होता है, check in कर सकता है. Then I think over timing kids out there they're like, oh दीदी ज़्यादा बोल रहे. I know they play oh they one game also, right? Free Fire है, PUBG है, they play this. I had seen my brother locking the door and he won't speak. He will come out in the room from after 5 hours because he was playing PUBG and he won't even pick up a course. They difficulty they are facing up. Over timing of Facebook and Reels is one of them. But I think if you use it wisely, then you get money from them. But how wisely you use it, that is all up to how you are connected with a group of people, right? If you are with a group of people who plays only PUBG, who plays only watches unnecessary stuff, I think that is again damage to the kids. And for coming generation, the one who are growing up, they are struggling and they have I have seen some schools that they are having deficiency in speaking. That is a major issue that current generation are facing. I think parents need to speak more and let the children be grounded, and also like collective parenting is what we have spoken before also. So I believe that is what we should focus on. Ultimately, it's the parents who are responsible. तो मैं पहले नंबर 2 आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो गैप है जो पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में जो बॉन्डिंग होना चाहिए, जिस तरह से अदर पैनल मेंबर्स ने भी कहा है कि बॉन्डिंग नहीं है हमारा कम्युनिटी में पेरेंट्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में और अपना बच्चों के बीच में. तो समय के साथ विद द फास्ट पेस ग्रोइंग वर्ल्ड, सोशल मीडिया का ज़माना, यूट्यूब का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना, तो इसमें आपका अपना हिसाब से यू बीइंग अ टीचर, अ प्रोफेसर एट द कॉलेज, अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आप पेरेंट्स को, स्पेशली द व्यूअर्स हु आर वाचिंग योर शोज, क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या किस तरह से हम करें कि जो बॉन्डिंग जो जिसमें जो कि बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स द मेंटल स्टेटस. आपको फ्यूचर में ग्रो करना है, आगे जाना है, बट आपका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, आपके पास पेरेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं है, तो अल्टीमेटली आप कहीं ऐसा जगह फंस जाएगा जहाँ पे आपको निकल उभर के आना मुश्किल हो जाता है. तो हाउ डू यू सी टू इट? Yeah, thank you. That's a lovely question. I will try to make it short. थोड़ा कम शब्द में बोलने की कोशिश करेगा. अभी का जो जनरेशन है ना, आई मीन स्पेशली वी मिलेनियल्स हो गया, जेन ज़ी हो गया, तो मिलेनियल्स लोग क्या है कि they don't want to ask for help. स्पेशली अगर हम खुद को भी एग्जांपल देगा तो मतलब हेल्प मांगना ये दर्शाता है कि आई एम वीक, मतलब हम अपना लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे. और होता ये है कि हम लोग जो है फॉल्स आइडल को आइडलाइज करने लग जाता है, इन द सेंस कि आई वाज अ बिग फैन ऑफ रैप कल्चर, तो आई स्टार्टेड आइडलाइजिंग एमिनेम एंड ऑल दोस रैपर्स जो मेरा अंदर में मतलब एक डीप इम्पैक्ट दिया है, एंड आई स्टिल फॉलो देयर सॉन्ग्स एंड वर्ड्स, देयर बार्स. बट ये है कि उन लोग अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उन लोग मतलब नार्कोटिक स्टाफ्स, इंटॉक्सिकेटेड स्टाफ को भी प्रमोट करता है, उसको हम लोग इमिटेट करने लग जाता है टू मेक इट कूल, मतलब कूल लगने के लिए, मतलब आदमी का सामने कि थोड़ा अपना स्वैग वो करने के लिए. यस एग्जैक्टली. तो मतलब ये चीज़ जो है कि मतलब इसका ऊपर कुछ सेंसर होना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है कि जो गलती आइडल को आइडलाइज करने लग जाता है, उसके बाद जब हम लोग धीरे धीरे वो कल्चर में घुसने लग जाता है, तो हम लोग का जो हम लोग सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा था वही हम लोग का लाइफ सपोर्ट बन जाता है. और जब हम वो लाइफ सपोर्ट हम लोग का बन जाता है, तो उसके बाद सोसाइटी से हम लोगों को स्टिग्मेटाइज मिल जाता है कि ये है, यहाँ से जाओ, ये ऐसा करो. तो मतलब इन द एंड हमको ये लगता है कि मतलब पेरेंट्स लोग को ओपन अप होना चाहिए अपना, स्पेशली अपना किड्स लोग का साथ. और स्पेशली पेरेंट्स लोग बोल के नहीं सुनता है, देख के सुनता है. मतलब अगर आप कुछ बोल रहे हो वो नहीं करेगा, लेकिन आप वही चीज़ को आप कर रहे हो तो आपका बेटा बेटी भी श्योर करेगा. बट आई डोंट नो मच अबाउट सिंस आई एम नॉट पेरेंट, तो ये विषय में नहीं ज़्यादा चलेगा. लेकिन अगर अभी ये सिचुएशन से आप गुजर गए, आप ये वे ऑफ लाइफ को, ये कल्चर को आप एडॉप्ट कर ले, और अगर आपको छोड़ने का तकलीफ हो रहा है,
तो we also provide we along with my team we run 2 or 3 rehabs हम लोग चलाता है and we also Sunday meeting organize करता है ये कम्युनिटी हॉल केराती में. तो those who want to speak, you know, anonymity को strictly maintain रखते हुए, those who are having a hard time, you know, those who are तकलीफ से गुजर रहा है, तो मतलब I wanted to encourage the parents also कि उन लोगों को हम लोग को संडे मीटिंग में भेजिए. हम लोग बहुत प्रोग्रेसिव चीज़ों के बारे में बात करता है और एनोनिमिटी को रखते हुए, मतलब एक बच्चा जो है अपना पेरेंट्स को कुछ फीलिंग्स बताने के लिए हिचकिचाता है, शर्म लगता है, तो वो फीलिंग्स वो किसी अननोन पर्सन को बता सकता है. तो वो अननोन पर्सन जो उसको बिना जज किए, बिना स्टिग्मेटाइज किए कुछ ओपिनियन दे सकता है. एंड आई बिलीव दैट टू बी वेरी हेल्थी. और ये जो हम लोग संडे मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है टोटली एनोनिमस, ये कमेटी हॉल केराती बंगुदम. तो I'm not alone. मेरे जैसा बहुत है. We approximate रोइंग में more than 100 to 200 recovery addicts हैं जो आज के दिन में it's been like 2 or 3 years absolutely clean without the use of any intoxicating stuff, even दारू also forbidden. ये एक वे ऑफ लाइफ बन गया. मतलब जो ये नार्कोटिक्स एनोनिमस जो एक प्रोग्राम है 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम बोलते हैं, ये वे ऑफ लाइफ बन गया. तो हम पेरेंट्स लोग को भी ये दरख्वास्त करना चाहेगा कि अगर आपका बच्चा आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा है तो मतलब बच्चा मैं आई डोंट मीन जो छोटा छोटा बच्चा लोग को नहीं, जो एडोलेसेंट बच्चा है तो उन लोगों को भेजिए. लेट हिम ओपन अप विद अस, यू नो, बिकॉज वी डोंट नो देम पर्सनली एंड वी नेवर जज एंड वी वोंट जज. वही बताना चाहेगा आपका क्वेश्चन का रिस्पॉन्स में कि care for your child, you know, just like my mother did for me, but I couldn't value the effort, you know, I couldn't acknowledge the effort she put on me, and I let it go in vain. But eventually I'm realizing, you know, I could never be a good son, but I'm still working on it. Samay hai, you know, it can still be done or undone, and I know I can change. And the people, you know, those who have inferiority complex and people those who are suffering from this, you know, बहुत सारा टर्म्स है, ADHD हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, बहुत सारा सिकनेस जो हम लोग को पता भी नहीं हम लोग के अंदर है, क्योंकि उसको डायग्नोस करने के लिए भी कुछ है ही नहीं स्पेशल इक्विपमेंट्स, या हम लोग को पता ही नहीं, लेकिन वी नेवर नो कि हम भी इससे सफ़र करता है. तो ADHD ये सब हो गया. तो बस इन द एंड आई जस्ट वांट टू से कि पेरेंट्स लोग बच्चा लोग को क्या कीजिए, ओपन अप होने दीजिए. आपका साथ नहीं होने से भी अपना पीयर्स लोग का साथ, अपना यू नो सीनियर्स लोग का साथ. एंड आई बिलीव दैट इज द हेल्दी वे दैट यू नो वी कुड वर्क, एंड वर्किंग ऑन इट इवेंचुअली वी विल अटेन गुड हेल्दी मेंटल लाइफस्टाइल एंड मेंटल हेल्थ. थैंक यू. अब तो पैनलिस्ट नंबर 5, जैसे कि पैनलिस्ट नंबर 1 ने कहा कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो सही नहीं है, तो द पैनलिस्ट नंबर 5 एंड इवन द पैनलिस्ट नंबर 2 ने आपका जो है कि पेरेंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो लैगिंग है, तो हमें किस तरह से खुल के आना चाहिए अपने बच्चों के साथ. दैट्स नंबर 2. एंड जिस तरह से पैनलिस्ट नंबर 3 ने मेंशन करा कि जो पेरेंट्स के बीच में जो कंपटीशन होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेके, कोई प्री प्लान नहीं है, कहीं कुछ कर दिया अचानक कुछ कर दिया, जो कि वो अनहेल्दी प्रैक्टिस है. तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा, यू बीइंग एन एकेडमिशियन, PhD स्कॉलर, रिसर्च भी करते हो और आपका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी में है, तो डू वी नीड पॉलिसी इंटरवेंशन INCDS की तरफ से या कुछ CBOs जो हमारे सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? डू वी नीड पॉलिसी इंटरवेंशन? क्या करने से अच्छा रहेगा? क्योंकि जिस तरह से पैनल नंबर 5 ने मेंशन करा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में सुसाइड, आपने भी मेंशन करा कि सुसाइड केसेस बहुत रिकॉर्ड हुआ और जबकि अभी भी रेलेवेंट है, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए when it comes to policy intervention, policies तो इतना सारा है कि we don't even know ना, बहुत सारा है. If we go and find to out, be precise, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल का जो पॉलिसीज है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल में नहीं हो पा रहा, बट वी एज ए CBOs. ओके. तो ऐसा है ऑलरेडी मेंशन कि जो पॉलिसीज और प्रोग्राम जो ऊपर से बन के आता है ना, दे आर नॉट कल्चरल स्पेसिफिक ना, दे आर नॉट कॉन्टेक्चुअल इनफ, क्योंकि वो तो पॉसिबल है भी नहीं, राइट. इंडिया इज सो डाइवर्स. आप अरुणाचल को ही छोड़ दीजिए, वो लोग तो पूरा इंडिया के लिए पॉलिसीज बनाता है. तो इवेंचुअली जो वहाँ पे कुर्सी में बैठेगा ना, उसी का ही जगह के हिसाब से बनेगा और उसी का अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनेगा. तो देयर इज ऑलवेज ए लैकिंग इन पॉलिसी ना. आई मे साउंड अ बिट लाइक एडवोकेट ऑफ अ गवर्नमेंट और आई मे साउंड अ गवर्नमेंट एजेंट, लेकिन यही रियलिटी है ना. तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को सबसे पहले ये जानना है ना कि अरुणाचल में प्रॉब्लम क्या है ना, कि देयर इज ए स्टिग्मेटाइजेशन ना.
सबसे बड़ा इशू ये है ना कि अगर कोई बंदा जो है ये साइकेट्रिस्ट का पास गया ना तो वो सोसाइटी में बदनाम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मतलब वो जो है कुछ बहुत गलत काम कर दिया हो या फिर बहुत खराब हो गया हो, तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो एज ए सीबीओ ना सबसे बड़ा काम हम लोग क्या कर सकता है, जो कम्युनिटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका तरफ से सबसे पहले क्या कर सकता है, हम लोग जो है ये जो स्टिग्मेटाइजेशन है ना उसको कम कर सकता है ना, ठीक है। क्योंकि फैसिलिटीज तो है, इवन ना मेडिकल में भी होता है ना, लेकिन उनके पास पेशेंट जो जाता भी है तो डर के जाता और छुप के जाता है ना। और जैसे कि ये लिंगी साहब ने बोला कि इसको भी मेंशन करना पड़ गया कि हम लोग के पास आओ, वी मेंटेन एनोनिमिटी व्हिच शुड नॉट हैव बीन ना, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनको भी जो है ये मेंशन करना पड़ गया कि हम लोग जो है एनोनिमिटी मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। तो इसमें जो है ना सबसे बड़ा रोल सीबीओ का होता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी से जो आता है ना वो आपको कल्चर को नहीं जानता है, तो आपको किस तरह से बात करना हो तब जाके समझ में आएगा। वो नहीं होता ना कि सेम चीज जो है आपको नीली साहब बताएगा आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन दिल्ली से कोई बंदा आगे बताएगा समझ में नहीं आएगा। क्यों? द वर्ड्स दे यूज, द वर्ड्स यू यूज, दे आर वेरी डिफरेंट। और जो कल्चर के हिसाब से जो वर्ड यूज होता है, जो लैंग्वेज यूज होता है, उसके हिसाब से अगर कोई समझाएगा आपको तो बेटर वे में समझ में भी आता है ना। क्यों? बाहर से जो आएगा ना दे आर टेक्निकल, वो लोग जो है पॉलिसीज और प्रोग्राम से ना बड़ा वर्ड यूज करेगा, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सिखाएगा जो कि किसी को समझ में आएगा और ज्यादातर को समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ना सीबीओस का सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि आपको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का हिसाब से समझाना। तो इसीलिए सीबीओस क्या कर सकता है, सबसे पहले वो स्टिग्मेटाइजेशन को हटाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर जिस दिन ये स्टिग्मेटाइजेशन हट गया ना, देन आई बिलीव कि सामने खुल के किसी को आने में और किसी को हेल्प लेने में इतना बड़ा इशू नहीं होगा। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव। थैंक यू। तो पैनलिस्ट नंबर 4, जबकि आप आईएमसीएलएस का वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो आईएमसीएलएस के ऊपर इस तरह का एलिगेशंस भी लगता है कि आईएमसीएलएस बस नाम के लिए है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल में कुछ नहीं कर रहा है। अदरवाइज बहुत सारा इश्यूज है, लेन का मामला हो गया, अभी सोसाइटी का बहुत ग्रेविंग इशू है, और कम्युनिटी बॉन्डिंग। अभी फॉर एग्जांपल आप ये जो रेप फेस्टिवल जो चल रहा है उसमें भी देखिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। व्हाई? अभी देखिए कोई जो चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है और अदर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वही काम कर रहा है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। तो क्या इसमें आपका तरफ से आप ऐसे सीबीओ पॉलिसी कुछ रेगुलेशन लाना जरूरी नहीं समझता है क्या? ऐसे आईएमसीएलएस ऐसे एपेक्स बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी, प्लीज। थैंक यू। अभी अगर इन्वॉल्वमेंट और पॉलिसीज की अगर बात कहा जाए तो लीडरशिप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, लीडरशिप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और साथ में लीडरशिप के साथ हाउ इसका जो डेलीगेशन हो रहा है उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मतलब अभी जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आईएमसीएलएस हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो वहाँ पे जो है हर एक काम का, हर एक एक्टिविटीज का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। तो उसको करना तो जरूरी है ना, मेरे हिसाब से। क्योंकि लोग अगर हमारे ऊपर विश्वास करके हमें जो रिस्पॉन्सिबल देता है तो हम उस रिस्पॉन्सिबल को लेना चाहिए और समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना चाहिए और साथ में जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको एग्जीक्यूट भी करना चाहिए। लेकिन इसमें हो सकता है हम लोग के अंदर में, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में कम्युनिकेशन गैप हो, या हो सकता है लीडरशिप का कमियां हो, है ना, कोई भी लेकोनेस हो सकता है। तो उसके लिए मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ इस सब चीज़ के लिए। और साथ में जैसे आपका क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारे सोसाइटी को लेकर जो बहुत सारा ड्रॉबैक्स चल रहा है,
सच कि सुसाइड हो गया, लैंड इश्यूज हो गया, बहुत सारा बात कल परसों के जो सिंपोजियम में हमने भी इसको गौर से सुना है। स्पेशली सुसाइड केस जो हमारा सोसाइटी में है, वो तो एज ए CBO मेंबर मैं भी सोचता हूँ कि इसके ऊपर बहुत क्लोजली रिसर्च किया जाए कि क्यों इस तरह का जो सुसाइड जो केस स्पेशली नॉर्मल टेंडेंसी के हिसाब से हो रहा है हमारा जो इसमें। तो वो मैं बिल्कुल समझ गया, लेकिन IMCLS एज ए CBO उनका तरफ से एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं होना चाहिए क्या कि मान लीजिए आप अपना फंडिंग के थ्रू से किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक स्कॉलर को एंगेज करके उनको आप जैसे आप मेंशन कर रहे हैं कि स्टडी होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल लेवल में ये नहीं हो रहा है। मैं बातों बात पे तो ये सब चला, आई विल कम बैक टू यू लेटर। राइट। तो ये चीज जो है अभी हमको इसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए है ना, इसको हम किसी को स्पॉन्सर करने के लिए क्या है कि हमारे पास फंड का भी बहुत जरूरत होता है। तो हाल ही में हमने ये देखा कि अपना सोसाइटी, अपना कम्युनिटी की तरफ से हमने ये देखा है कि कुछ बहुत इश्यूज चल रहा था। मैं वो इश्यूज तो नहीं बोलूंगा, बट हम लोग ने एक डोनेशन जो ड्राइव हम लोग ने किया था, वो भी आपका कम्युनिटी कजेस के लिए है ना, हमारा सिक्योरिटी के लिए है, हमारा जो एग्जिस्टिंग पर्पस के लिए था। बट लोगों का जो इंटरेस्ट होना चाहिए है ना, तो वो तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, लेकिन है तो बहुत कम लोग के मन में होता है। तो ओवरऑल क्या है कि अगर हम किसी भी कर्जेस को लेकर अगर हम उसको मॉनिटरिंग करें, या तो हम उसको इम्प्लीमेंट करें, या तो हम किसी को स्पॉन्सर करें, तो क्या है कि हमारे पास जो मेन रिसोर्स है वो जो है फाइनेंशियल। तो इसमें जो है जितना सारा कॉन्शियस लोग है जो हमारे कम्युनिटी में या कम्युनिटी में इमू में ना, इसको लेके एक फीलिंग्स लाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म को उनका लोगों का यानी कि अपना कम्युनिटी का फीडबैक और सपोर्ट नहीं होने से क्या होता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है ना, वो भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक इनकॉम्पिटेंट कहा जाए, ऐसे तो नहीं बोलूंगा, फिर भी ये इस तरह का समस्या जो है प्रॉब्लम्स आ जाता है। सो अल्टीमेटली लोगों का इन्वॉल्वमेंट और फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जो बहुत जरूरी है। तो राइट नाउ वी आर फेसिंग सच काइंड ऑफ फाइनेंशियल जो कमियां है वो हम लोग बहुत फेस कर रहे हैं। तो बेटर अगर इस चीज को अगर हम लोग सही तरह से एक प्लानिंग करके स्ट्रेटेजी बना करके सोचेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको ये जो सोशल इविल्स है ना, और बहुत सारा जो हमारा सोसाइटी में हमारा जो सोसाइटी के लिए जो हानिकारक है, जो तकलीफें हैं, उसको तो हम ऑब्वियसली दूर कर सकते हैं। ओके, तो पैनलिस्ट नंबर 3 मैम आप चाह रहे थे कुछ ओपिनियन शेयर करने के लिए, उसके बाद में मेरे साथ भी कुछ और सवाल आते हैं, तो मैं ये सुसाइड के बारे में बोलना था हमको। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी में ऐसा बोलता है कि सुसाइड करने से आपको हेल में जगह मिलेगा, आपको हेल जाना पड़ेगा। हिंदू में बोलता है कि आप सुसाइड करने से आपका आत्मा भटकेगा। हम लोग हिंदू में ऐसा नहीं है कि भगवान है, हम लोग भगवान को उल्टा खीन बोलते हैं ना, तो वो बिलीव भी हम लोग के पास नहीं है। इसलिए भी बच्चों लोग को या यंगस्टर्स लोग को किसी को डर नहीं है, क्योंकि हम लोग का ईगो जो हम लोग का पास जो है ना, वो हम लोग बहुत मीन्स इंडिविजुअलिस्टिक है हम लोग, सब लोग ना, हम लोग ईगो लोग, वो बात अलग है। तो अभी सुसाइड हो रहा है, और मैं समझती हूँ कि CBOs जैसे IMCLS वो द हेड ऑफ द हम लोग का कम्युनिटी है, उसने एक ऑर्डर पास किया, तो ये बनना चाहिए। और ऐसा बनना चाहिए कि सुसाइड किया, क्यों सुसाइड किया, किसने सुसाइड किया, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या मालूम मर्डर भी हुआ होगा। 8 साल का बच्चा सुसाइड करता है क्या, 9 साल का बच्चा सुसाइड करता है क्या, आप लोग पता कीजिए। कोई बस्ती में हुआ, लेकिन ये बात को रिकॉर्ड में नहीं है। आप ये रिकॉर्ड को मेडिकल में भी रिपोर्ट कीजिएगा,
मेडिकल डीएमओ को भी पता चलना चाहिए, डीसीएम को भी पता चलना चाहिए, सीडीओस को भी पता चलना चाहिए, ये पोस्टमार्टम होना जरूरी है। क्योंकि अभी एक सुसाइड कर लिया, उतार दिया, नियम किया, और बच्चा लोग और ज्यादा एंकरेज क्यों हो रहा है पता है? हम लोग का इधर लोग ऐसे बैठ के हक करता नहीं है, अपना वाइफ को पब्लिकली हाथ नहीं पकड़ता है। कभी देखा किसी को अपना पत्नी को हाथ पकड़ के घूमते हुए? कभी किसी ने अपना पत्नी का बैग लेके घूमते हुए, या पत्नी और पति ये सब करके? बहुत रेयर केस में आपको दिखने मिलेगा, नहीं दिखने मिलेगा। लेकिन मर गया ना, गोद में लेकर रोता है। बच्चा मर गया, माँ गोद में लेकर, वो तो ऑब्वियसली होता है। तो उसमें जो अगल बगल में देखने वाला यंगस्टर क्या देखता है? ओह, हम मरने से भी हमको यही प्यार मिलेगा। और इतना अच्छा काम करता है कि स्टूडेंट मर गया, सारा जेएनबी का स्टूडेंट पहुंच गया, हाई सेकेंडरी का बच्चा पहुंच गया, तो ये एनकरेजमेंट क्यों देता है? स्टूडेंट्स को बुला के फ्यूनरल में सब रो रहा होगा, इतना हल्ला चिल्लम चिल्ली, तो उसमें कोई ना कोई तो एनकरेज हो रहा है। तो जो इमोशनली बहुत डाउन है उसको मिल रहा है, हाँ मेरा पिताजी माँ कुछ बोलेगा ना, हम भी यही दिखाएगा, हम भी यही करके दिखाएगा, ताकि उन लोगों को फील हो मेरा मरने का बाद में कितना तकलीफ होता है। माँ पिताजी का जिंदगी में स्कार रहेगा, वो जिंदगी भर रहेगा। मेरा फैमिली में हम 7-8 टूट तक हम लोग दफना लिए सुसाइड में, सब चाचा से हो गया, जीजाजी से हो गया, दीदी से हो गया, भाई से हो गया, बहन से हो गया, वर्कर से हो गया, सबका हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात को पोस्टमार्टम करना जरूरी है, सीरियस लोग करना चाहिए, चलिए थैंक यू सो और मच। सब लोग बोलना चाहिए इसको। ओके, तो वी जस्ट हैव 15 मिनट्स। तो वैसे तो अभी Q&A सेशन है, तो ऑडियंस में से बच्चे लोग में से कुछ पूछना चाहेंगे तो इट्स ओपन टू यू। आप लोग कुछ पूछेगा सर लोग से, बच्चों में से, और एनी ऑडियंस हियर वांट्स टू आस्क समथिंग टू एनीबॉडी? Q&A सेशन है वैसे। तो सब एक्सपर्ट्स से सुनने के बाद मेरे को ये लगता है कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को इम्प्रूव, पेरेंट्स के अंदर ज्यादा इम्प्रूव लाना जरूरी है। आज हम लोग यहाँ बच्चों लोगों के साथ बात कर रहे हैं, बच्चा को बिठाया है, इसलिए हम लोग पेरेंट्स को ज्यादा बता रहा था। बच्चा लोग आगे था, हम लोग को थोड़ा अजीब हो गया। इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, बच्चों से पहले तो पेरेंट्स का अपना मेंटल कंडीशन है को ठीक करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा लास्ट में, इससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप प्लीज आप कीजिएगा। देन आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स नंबर 5 टू प्लीज close this session with your closing remark. अच्छा, मैं स्पेशली आज का जो सिंपोजियम का जो प्रोग्राम है, इसके थ्रू से मैं कुछ मैसेज देना चाहूँगा। स्पेशली जो सुसाइड केस हमारा जो सोसाइटी में जो बढ़ रहा है, तो अभी में एक बात यह है कि जो सुसाइड करता है वो एकदम सेल्फिश होता है ना? जो सुसाइड करता है वो एकदम सेल्फिश होता है, क्योंकि वो समझता है कि उसका प्रॉब्लम दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। उसको ये मालूम नहीं है कि आपको अपना पेरेंट्स ने, है ना, अपना मम्मी माँ ने, पिताजी ने कितना मेहनत करके जो पाला है, पोसा है, आपको उम्मीद करके बड़ा किया है, ताकि आप बड़ा होके उनको मदद करेगा। लेकिन क्या है कि आपका बहुत छोटा सा जो प्रॉब्लम्स, सुसाइड ऐसे ही नहीं करता है। जैसे मैडम ने कहा, छोटा सा कारण से सुसाइड करता है कि मैं सुसाइड करके दिखा दूंगा ना, मैं सुसाइड करके ये मम्मी को, पापा को, भाई को, भैया को मैं दुख दे दूंगा। आप तो चला गया ना, आप तो चला गया, आप अपना वो छोटा सा जो सेल्फिश प्रॉब्लम लेके आप तो चला गया, लेकिन आपका जो पेरेंट्स का जो मेहनत में, जो अपना पहले वाला बात में भी मैंने कहते, जो मेहनत करके आपको पढ़ा रहा है, आपको लिखा रहा है, लेकिन आप तो फ्री में चला गया ना, तो उनका जिंदगी में कितना दुख हुआ, कितना तकलीफ हुआ। आप किसी बॉयफ्रेंड का लफड़ा में, किसी गर्लफ्रेंड का लफड़ा में, या फेल हो गया, या कम मार्क आया, या किसी ने झापड़ दे दिया, या पेरेंट्स ने आपको कुछ अनकही बात कर दिया, तो आप इमोशनल होके आप सुसाइड करते हैं। इसका मतलब आप एकदम सेल्फिश है। और सोसाइटी में जो सुसाइड करता है वो सेल्फिश आदमी, जो किसी का बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने आप के बारे में जो सोचता है ना, वही सुसाइड करता है ना? सो थैंक यू। ओके, बिफोर द क्लोजिंग रिमार्क मैं चाहूंगा आप दोनों में से कुछ बोलना चाहिए, अदरवाइज विल क्लोज इट, विल रैप इट अप। Maybe for the youngsters sitting out there,
Mike. Kids sitting out there, they are very dear to me. I've been associated with them since 22, and I know that they like some parental growing, right? So I know you don't get a hug from your parents. You don't get a love saying that I love you, Uya or Utachi. I know the kid's name. So they might not say the love that they would be able to express from there, because we didn't have love language in our ancestors' times. Like हमारा parents का time में ये love you language ही नहीं था. इसका मतलब नहीं कि वो लोग आप लोग को प्यार नहीं करते, उतना ही बराबर प्यार करता है जितना वो लोग आपका जब आप फर्स्ट क्राई किया था वो आज तक इतना प्यार करता है कि हम चाहते हैं आप लोग रियलाइज करो. डोंट बी टू मच ऑफ इमोशनली मतलब वेंटेड आउट की रील्स में इतना सारा मतलब वाहियात. I'm like saying this literally. There are so many other reels that shows कि आप emotionally weak है. There are so many video shows कि आप emotionally weak है. Those videos makes you कि हाँ यार हमको भी ऐसे ही feel हो रहा है क्या? And it keeps on coming, scrolling down. It keeps on coming कि now I'm depressed. Algorithm. Yeah, algorithm catches you, right? So you like that video, then another video pops up, then same emotion like आप ऐसे emotionally down है क्योंकि आपका माँ जो आपको I love you नहीं बोले, hug नहीं किए. It doesn't mean कि they don't love you. Their way of love is like bringing you here and putting you in this hostel and you can study and you can be the better person. They don't want you to be in खेती, right? They don't want you to be in same घावड़ी दाना काट के बिना स्लीपर का लाइफ जीना नहीं चाहते. तो I want you to think over this. हॉस्टल जाके सोचो कि how just write a paper, make एक sheet paper में लिख के लाइब्रेरी में सबमिट कर दो. I'll read them. Don't write your names. I'd love to know this. I'll visit you guys soon. So I want you to express your emotion. So don't be too much of ऐसे मम्मी पापा नहीं बोलते इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं करते. उतना ही है. मेरा माँ और मेरा पापा आज तक हमको हक नहीं किए. I don't remember जब से हमको याद है कि बात किए तब से I don't remember I hugged them. But I have always felt their love, their emotion for me, despite all the odds. Same goes for you. आप लोग के लिए भी वही है. Okay, thank you so much. To Mr. Tamin Mili, मैं चाहूँगा कि आप पूरा entire session को overview देते हुए चीज़ को मतलब close wrap it up. Thank you. Okay, thank you very much for this opportunity. क्योंकि I had like my teacher here and my seniors here, उसके बावजूद भी मुझे ये मौका मिला. But before that, I would like to add to मैडम has said कि हम लोग यहाँ पे जो condemnation का वो concept नहीं है. तो इसमें इशू ये हुआ ना कि आई एम रियली सॉरी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, लेकिन आई वांट टू नो द पीपल. ठीक, आई वांट टू लेट द पीपल नो कि हम लोग का यहाँ पे कंडेमनेशन था ना, लेकिन क्या हुआ ओवर द लाइक पीरियड ऑफ टाइम जनरेशन चेंज का थ्रू हम लोग भूल गए. और इसका मेन वजह ये हुआ कि द कल्चर ऑफ शो ना, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का एक कंसेप्ट है ना, और हम लोग का सोशियोलॉजी में और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में आता जाता है ना. तो उसमें क्या होता है ना कि इंसान को जो है दिखाना है कि आई एम रिच, आई एम वेल्दी ना, एंड पीपल शुड सपोर्ट मी. जैसे कि आपने बोला वैलिडेशन, एग्जैक्टली वो है ना. चलिए, तो क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे दो किस्म का फ्यूनरल राइट्स होता है. एक बुखे हम रोचे आम ना के याम जन इमो शीतु निशी वालो बुया यागुंदो ना. बोलने का मतलब है कि इन आवर प्रीवियस जनरेशन या सिस्टम वाज नेवर मेड फॉर द पीपल who made with untimely death. ये कभी नहीं था. क्यों? There was a concept of revenge. ना, हम लोग का यहाँ पे ये माना जाता था कि अगर वो टाइम से पहले मर गया तो उसको किसी ने मारा है तो हम लोग को रिवेंज लेना है. ठीक है. और as per the ritual आप रिवेंज तभी ले सकता है जब रोजा करेगा ना. यहाँ में ना वो रिवेंज का जगह ही नहीं होता है. रिचुअल का सिस्टम अलग है. तो लेकिन क्या हुआ कि हम लोग आदमी को भी ये दिखाई देना कि जो आमो जे ए हो में या बुदो में ना ये सोई पी गुआ पो आई तो ngabu ai o ने ngabu ए हो तो जे ना मी में ए हो दो आशंका पे हुई ना उधर. देयर वाज द मेन रीजन जिसका कारण से क्या होना कि आशा को रोजा करता है नहीं करता है. ठीक है. तो उसमें प्रॉब्लम ये था ना कि प्रॉब्लम ये हुआ कि रोजा करने से जो है एक सोशल स्टिग्मा रहता था कि ये निशी वादो ना आई ने ना ये शक्ति टाइप से ना कि मतलब इसको चलो मतलब निपटा दो, बदला ले लो, फेंक दो. देयर वाज समथिंग लाइक दैट. ऐसा था. लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, हम लोग जो है ना अपना आपको रिच दिखाने का चक्कर में एक राइट करते हैं. हम ये नहीं बोले कि यही मेन वजह है, पर देयर इज आल्सो ए रीजन ना. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसका मतलब पॉजिटिव चीज में चेंज नहीं हुआ, नेगेटिव चीज में. एग्जैक्टली. और शो ऑफ का कल्चर ना कभी पॉजिटिव पे नहीं जाता है. दैट वी हैव टू रिमेंबर ना. बात लंबा हो जाएगा ना, लेकिन बस कोर ऑफ द मैटर इज की
हम लोग ये क्या करते हैं, जो रिचुअल इसी को कंडेम करने के लिए ना और इसी का फुलफिल के लिए जो हम लोग का पास एक अच्छा खासा रिचुअल था, उसको हम लोग ने कंप्लीटली गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि वी वांट टू लुक रिच ना, वी वांट टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स ना। अच्छा इमो आप या जो भाज ना था नंबर या जो ता हुआ है ना, देयर इज नो प्लेस ऑफ रिवेंज और दैट रिचुअल इन या। ठीक इस और जहां पे अनटाइमली डेथ होता है हमेशा हमको चाहिए करना होता है, लेकिन हम लोग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को गरीब नहीं करते ना। ठीक है, और वो समय में क्या था ना कि या को जो ना ज्यादा अमीर लोग क्या करता था ना, एवं दोनों है ना, इसीलिए देयर इज ऑल्सो रीजन कि हम लोग का यहाँ पे जो एक्चुअल चीज में जिसको स्टिग्मेटाइज करना चाहिए था ना, उसको स्टिग्मेटाइज नहीं करके उल्टा कमन बना दिया ना। तो ये है। तो now back to my like the original task which I was assigned to. I'm really sorry for the extra time. तो मेंटल हेल्थ हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कस किया है बहुत अच्छा लगा ना। we are almost from the similar way, yet we had so much of diverse experience and diverse knowledge. तो I hope viewers लोग को थोड़ा बहुत तो सीख मिला होगा। तो मेंटल वेल बीइंग पे हम लोग ने बात शुरू किया तो हम लोग को ये पता चला कि अरुणाचल में जो है मेंटल वेल बीइंग का जो है यहाँ पे कंसेप्ट बहुत लेकिंग है ना। ठीक है, वी डोंट इवन कंसीडर इज अ थिंग। तो सबसे पहला हम लोग को यहाँ से सिंपोजियम से ये सीखने मिला कि हम लोग को कंसीडर करना है कि मेंटल वेल बीइंग भी एक चीज है ना। ठीक है, व्हेन वी से हेल्दी पर्सन इट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ना। फिजिकली फिट होना है, बी एबल टू वर्क ना, मेंटली टू थिंक ना, टू डिसाइड, टू एनालाइज एंड सोशली टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, राइट ना। तब जाके हम लोग हेल्दी होता है। और उसके बाद में जो है अरुणाचल का प्रॉब्लम ये हुआ कि इतना सडन चेंजेस आया कि हम लोग जो है हम लोग का सोसाइटी जो है आने वाले नया चीज को कोप अप नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या हो गया, हम लोग का पेरेंटहुड की जो है इसमें इफेक्ट हो गया। ठीक है ना, इसीलिए आजकल के जमाना में जो है जितना भी जो स्टूडेंट्स में देखना है, मोस्ट ऑफ द मेनी केसेस पेरेंट्स आर द मेन रीजन ना। किसी का ब्रोकन होम हो गया ना, ठीक है, कोई जो है पेरेंट्स बच्चे का प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है, तो बच्चे लोग को भी सिखाना था। थैंकफुली मैम ने इतना सुंदर से समझा दिया। तो आई वोंट लाइक नेरेटिव टू स्टूडेंट, अभी आई वुड लाइक टू गो टू द पेरेंट्स कि हम लोग को ये समझना है कि हेल्थ भी एक इशू है। आप लोग का समय में जैसा किसी का सर्वाइवल था वो सर्वाइवल अभी नहीं है ना। आजकल का जमाना ना सर्वाइवल का टेक्निक्स चेंज हो गया ना, तरीका चेंज हो गया। उसी के साथ साथ हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग का आसपास में सराउंडिंग में जो बहुत सारी चीजें वो भी चेंज हो गया, जिसका कारण से जो है हम लोग का स्टूडेंट्स का और बच्चे लोग का नया जनरेशन का सोचने का समझने का तरीका भी चेंज हो गया। इमोशनली दे आर मोर फ्रेजाइल, ठीक है, इमोशनली दे आर वीकर इन कंपैरिजन टू यू। तो इसीलिए अभी पेरेंट्स लोग को भी ये समझना है कि हम लोग का बच्चा जो है दे आर फ्रेजाइल ना। हम लोग यहाँ पे एक रॉन्ग मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट भी है ना, कि मतलब ना तगड़ा है ना, इसलिए जिंदा है तो काफी है, राइट ना। वो कंसेप्ट अभी नहीं चलेगा। हम लोग उससे आगे बढ़ के जो है हम लोग को इवेल्युएट करना है। प्लस व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन इन द ओवरऑल वेलबीइंग ऑफ द स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग को जो है एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है ना। ऐसा नहीं होने कि सामने का बच्चा अगर कोई बड़ा काम अचीवमेंट कर लिया तो ये आईएएस बन गया, तुम यहाँ से में क्यों रह गए, इस तरह काम नहीं करता है। क्यों? द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, राइट ना। एवरी पर्सन इज देयर ओन पर्सनालिटी, देयर कैपेबिलिटी। तो हम लोग का यहाँ पे एक और चीज भी चेंज, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज ये हुआ कि हम लोग का यहाँ पे एक समय में जब पढ़ाई का केस आया था ना, तो क्या हो गया, हर किसी को पढ़ना है, राइट ना। देयर इज आल्सो चेंजिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ना। हर कोई पढ़ के आईएएस नहीं बन सकता है। इनफैक्ट आईएएस का नंबर भी 1500 से आजकल 700-800 हो गया ना, तो उतना तो वो भी नहीं पाता है। तो हम लोग को ये भी समझना है। तो इसीलिए बच्चा लोग का जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद में व्हेन इट कम्स टू द पीपल हु एडमिट और हु आर गोइंग थ्रू मेंटल इलनेस, हम लोग को ये समझना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट वी हैव टू ओपन ना, ठीक है। उसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, हम लोग को जो है उसके साथ ओपन कम्युनिकेशन रखना है, ताकि जैसे कि मैडम लोग ने और सर लोग ने बताया ना, पैनलिस्ट ने, कि हम लोग जो है अच्छा से कम्युनिकेट कर पाए और वो लोग भी हम लोग को बता सके ना। अदरवाइज वो सामने वाला भी हमेशा कॉन्शियस रहेगा कि ये तो हमको जज करेगा, तो आई विल गिव द रिस्पॉन्स जो इसको अच्छा लगेगा, और उसके हिसाब से आप जो जजमेंट देगा फिर आपको गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, सबसे पहले ओपननेस लाना पड़ेगा, और उसके बाद वी हैव टू शो देम कि यस वी केयर फॉर यू, राइट ना, व्हिच इज as the panelists has discussed, which is very much lacking in the donation ना। And to be precise, like all the tribal people in Arunachal Pradesh ना, मतलब we don't want to or we don't know how to show we care ना, तो केयर को भी दिखाना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है हम लोग को प्रोफेशनल हेल्प को जो है
लेना सीखना होगा और उसको जो जज नहीं करना है, स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, और उसके बाद में जो है हम लोग को जो है एक दूसरे के साथ ओपन कनेक्शन रखना है। और व्हेन इट कम्स टू द चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हम लोग को ये याद रखना है कि फोन और मोबाइल का दुनिया तो ठीक है, लेकिन व्हाट वी एक्चुअली लर्न इज शुड बी बेस्ड ऑन द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू लिव ना। आप रील्स में यूएस का कल्चर सीख के आप अरुणाचल में जिंदा नहीं रह सकता है ना, ठीक है। और ये चीज बच्चों लोग को भी समझना है और पेरेंट्स लोग को भी समझना है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा ना कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो अलग हो जाएगा ना, ठीक है, आपका आसपास का रियलिटी अलग हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए अगर ये चीज को समझ के अगर हम लोग जो है आगे बढ़ा जाए तो होपफुली वी कैन कोप अप विद दिस issue of mental health. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Tamil, for this wonderful closing remark. We have come to the end of day 3 of the Symposium 2.0 being organized under the aegis of Central Race Celebration 2025 under the leadership and chairmanship of Mr. Dibang Meto and Mr. A.B. Meto. Thank you so much to all the panel members, and thank you to the online viewers and everybody, and to all those